Hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग? I hope you have solved paper number 1, 2 and 3. Today I am presenting paper number 4 with you guys of our mock test series. चलिए बात करते हैं आज. अगर सब उससे पहले अगर किसी ने नहीं भी किया है ना, प्लीज अगर किसी ने पेपर नंबर 3 तक नहीं पहुंचे, so please please do that. 1, 2 and 3 you should solve before attempting your paper number 4. ऐसा नहीं है कि आपने 1, 2, 3 नहीं किया है and you are starting with paper number 4. Please don't do that. Please go in the sequence wise because जो मैंने order बनाया है 1 का it's easy level. Then 1 से जिसे आप 2 पे जाएंगे the level will be like आपको suppose उसका easy level कितना 100% था, तो second वाले का it will be 90, then third वाले का it will be 80, 70. इस flow में हम बढ़ते जाएंगे. So please solve first of those 3 papers completely. आपको 4 अटेम्प्ट करने से पहले वो 3 पेपर बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए. So let's start with the video first of all with our motivational thought. If you don't pay attention to your failures, then you will never get success. This is one of the true fact. अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो शायद आगे चल के वही गलतियां आप रिपीट करते रहेंगे, आप चीजों को बेहतर नहीं बना पाएंगे. With this positive thought, let's start with section A. Question number 1. Sum of order and degree of the differential equation. Everybody knows how to find out order and everybody knows how to find out the degree. क्या ऑर्डर होगा फटाफट से बता दीजिए. ऑर्डर क्या होता है? द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. यहाँ की अगर बात करें तो इट इज डिफरेंशिएटेड वंस और यहाँ की बात करें तो डिफरेंशिएटेड ट्वाइस. तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? फटाफट बोलो. ऑर्डर विल बी 2 एंड द डिग्री विल बी, डिग्री क्या होती है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर. सो डिग्री विल बी हियर व्हाट? यहाँ पे ऑल्दो 4 है बट हाईएस्ट पावर हमें हाईएस्ट ऑर्डर का ही देखना है, तो इसका डिग्री कितना है? इट्स 1. So degree will be 1, but हमसे क्या पूछा गया? हमसे सेपरेटली नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया सम दोनों का. So sum will be 2 plus 1, the answer will be 3, and according to option C will be the correct for first question. Clear? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. y is equals to x cube plus 10x आपको दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है वो वैल्यू. y डबल डेरिवेटिव minus 2x square 10x equals to कितना होगा? Everybody knows now how to differentiate. What is y dash here? Because here he asking for the double derivative, तो हमको 2 बार निकालना पड़ेगा. So y dash की वैल्यू कितना होगा? x क्यूब का डेरिवेटिव what is that? That is 3x square. और 10x का क्या होता है बेटा जी? That is secant square x. This is this is very simple thing. Now again we have to differentiate. Again on differentiating again, what do you need to solve here? If you see this is 3x square, what will be derivative of this? This will be 6x plus इसका क्या होगा? First of all you will apply what? Power rule. So 2 into secant x आएगा पहले और फिर secant x का डेरिवेटिव क्या होता है? It's secant x of tan x. क्लियर? अब हमने ये निकाल लिया है बट हमसे वो क्या पूछ रहा है? He's asking for the this टर्म. तो इस टर्म की अगर हम वैल्यू निकालें सो वो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू रख दीजिए दिस प्लस 2 secant स्क्वायर x tan x माइनस, अब माइनस क्या करना है इसमें से? जो है 2 secant स्क्वायर x tan x. ठीक है? सो व्हाट यू आर गेटिंग? दिस टर्म विल कैंसिल आउट विद दिस वन and you are left with what? 6x only, and accordingly option B will be the correct option for question number 2. देखिए I will suggest कि आपके जो MCQ आते हैं ना, please don't give like chorus answer कि आपने like without thinking you don't mark any of the option. आप निकालिए because ज्यादा आप खुद देखेंगे ज्यादा टाइम नहीं लेता है. This is not time consuming. आप फटाफट से निकालिए and then accordingly you give your answer. कोई ये नहीं आपको मना नहीं करेगा कि आपने एक्सप्लेन क्यों किया. Write down your answer also and write down your option also. You can give explanation. नो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं बिल्कुल भी. तो प्लीज सिर्फ देख के क्वेश्चन के आंसर्स को मार्क करना बंद करिए और सॉल्व योर क्वेश्चन एंड देन अप्लाई दैट मार्क योर आंसर. उससे कि आपके जो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस है दैट विल बी 100% लाइक कम हो जाएंगे, वरना तो आप गलत ही करके आएंगे आधी चीजें. चलिए बात करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 की. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दिया है 7/13, बी दिया है 9/13 एंड इंटरसेक्शन इज 4/13. ही इज आस्किंग फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी? क्या होता है? What is probability of A by B? क्या होता है फॉर्मूला? दिस कंडीशनल A of intersection B divided by probability of B. Now what intersection B you are given, that is 4/13 and the B is given to be 9/13. So 13 cancel out, answer will be 4/9 and accordingly your option number D will be the correct option for the question number 3. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. देखिए बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इनमें. क्लियर है बात? चलिए अब है x is a real then minimum value of, अब मिनिमम और मैक्सिमम कैसे निकालते हैं? आपके पास जो भी फंक्शन आपको गिवन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डू व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू व्हाट? द फर्स्ट डेरिवेटिव. व्हाट इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वेश्चन? दैट विल बी 2x minus 8. उसके बाद आप क्या करते हैं बेटा?
You put that equals to 0 to find out your stationary points. So 2x minus 8 will be equals to 0. एल्गोरिथम आपको सबको पता है कि आपने कैसे करना है, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया आप लोगों को. चलिए अब उसके बाद ये तो पॉइंट आ गया. अब इस पॉइंट पे या तो मैंने मिनिमम देगा या मैक्सिमम देगा, बट ही इज आस्किंग डबल डेरिवेटिव पे पूछ लेते हैं. व्हाट इज डबल डेरिवेटिव हियर ऑफ दिस क्वेश्चन? 2x minus 8 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बिकॉज minus 8 will give me 0. So it is what? It is greater than 0, और greater than 0 का अगर केस होता है डबल डेरिवेटिव में, you know the function is supposed to be give me minimum value. It's a case of minimum. But उसने हमसे पूछा है minimum value of the function. तो minimum value of function at which point you will calculate? At your stationary point. That will be what? 4 square minus 8 into 4 plus 17. And this will give me what? कितना आंसर आ जाएगा? This will be 16 minus 32 plus 17. This will give me 33 and minus 32 and the answer will be 1. देखिए बहुत मतलब at least you will get one minute for this. मतलब 1 मिनट ना आपको लगेगा नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, if you know the concept. So accordingly the answer will be C option for question number 4. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. I hope these 4 questions are clear to you. आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक द वीडियो and subscribe the channel for more updates. And share with your friends also कि वो लोग भी कर पाए इन mock test paper series को, and that will be very much beneficial for you guys in your board exams. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. आपको एक LPP का क्वेश्चन दिया है, ग्राफ दिया है. दिस इज द शेडेड पोर्शन यू आर गिवन. आपको फंक्शन दिया है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं. वो बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू की क्या होगी. पॉइंट तो बात की बात है, उसने पहले तो हमें ये हमारा दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसने बोला कि मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या. अब मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है? एट द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ योर फिजिबल सोल्यूशन. कहाँ पे आपका कॉर्नर पॉइंट इज फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट इज 0,4. द सेकंड वन इज दिस इज योर रीजन, जहां कॉर्नर है शेडेड पोर्शन वाला वही हम उठा लेते हैं. एंड द लास्ट वन इज दिस 12,60. ठीक है, उसने हमसे पॉइंट नहीं पूछा कि किस पॉइंट पे होगी, उसने बोला कितनी होगी. व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू. तो पुट करके देख लीजिए जरा. यहाँ पे अगर मैं पुट करती हूँ तो x का तो 0 देगा, दिस विल गिव मी -16. ये वाला देगा 0 और ये देगा कितना? 12 into 3 minus 6 into 4. That is what? 12 into 36 minus 24. You will have what? 1, 2. And 1, 2 अगर आप देख लो, मैक्सिमम पूछा था, ये मिनिमम मैक्सिमम पूछा था. तो मैक्सिमम कौन सा है? -16, 0 और 12 में it will be 12 and accordingly option C will be the correct answer for question number 5. पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. ये क्वेश्चन बेटा बहुत इजी है, 10th में बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, मैंने एक बार बच्चों को पढ़ाया भी था ये. If a leap year selected at random, then what is the chance it will contain 53 Tuesdays? अब लीप ईयर की अगर बात करें, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? टोटल डेज, हाउ मेनी डेज वी आर, टोटल डेज कितना हो गया हमारे पास? दैट विल बी 366. अगर 366 को आप डिवाइड करेंगे किससे? 366 को आप वीक से डिवाइड करिए. कितने वीक में डेज होते हैं? 7 होते हैं. तो कितना आएगा यहाँ पे? 7 5 इट विल बी 35 and 1 6. अगर आप 4 it will go on now what 2 पे, so you will have 14 and 2 is remainder here. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास जो बन रहा है दैट इज 52 वीक्स बन रहा है टोटल, एंड यू आर लेफ्ट विथ 2 डेज. तो ये तो चलो बन गई, ये तो बात अलग होगी, वीक तो खत्म हो गई, इसकी बात ही नहीं करते. हमें बात करनी है डेज की. उसने बोला है कि इट विल कंटेन 53 ट्यूजडे. अब जो ये 2 दिन बचे हैं दैट कैन बी संडे एंड मंडे, दैट कैन बी मंडे एंड ट्यूजडे, दैट कैन बी ट्यूजडे एंड वेडनेसडे ऑल्सो. नेक्स्ट कैन बी वेडनेसडे एंड थर्सडे. Next case can be Thursday and what? Friday. The next case can be Friday and what? Saturday. And the last can be Saturday and Sunday. क्योंकि Sunday और Monday तो we already taken. तो total कितने cases बन रहे हैं? How many total cases we have? Total कितने case बने मेरे पास? बोलिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. तो total case बनते हैं मेरे पास 7. ठीक है. लेकिन हम बात करते हैं फेवरेबल की. फेवरेबल क्या चाहिए हमें? वी आर टॉकिंग अबाउट 53 हाउ वोट ट्यूसडे की बात कर रहे हैं. तो अब ये देखिए ट्यूसडे आता कहाँ पे है? एक तो इसमें आ रहा है मंडे एंड ट्यूसडे में, और कहाँ पे आ रहा है? एक आ रहा है ट्यूसडे और वेडनेसडे में. और कोई ऑप्शन में आ रहा है ट्यूसडे? नो. सो हाउ मेनी फेवरेबल वी हैव? फेवरेबल वी हैव 2. एंड अकॉर्डिंगली व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? क्या होती है? फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, जो फॉर्मूला आप 10th सेट पढ़ते आ रहे हैं. दैट विल बी 2/7 एंड आंसर विल बी 2/7 फॉर दिस क्वेश्चन. एंड द ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट. मैं इसमें एक और एडिशन कर देती हूँ. अगर सपोज आपके पास लीप ईयर ना होके नॉर्मल ईयर होता, 365 डेज का, तब इसका आंसर क्या होता? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. क्या बोला मैंने कि अगर यहाँ पे तो दिया है लीप ईयर, अगर ये लीप ईयर ना होके 365 डेज का ईयर होता तो इसका आंसर क्या होता? व्हाट इज द चांस दैट इट विल कंटेन 53 ट्यूसडे? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट विल बी द आंसर फॉर
that question. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. वैल्यू ऑफ लैम्डा आपको पूछा है उसने. सो दैट these two given vectors are what? They are perpendicular. बेटा कब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं? जब दोनों का क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0. कैन यू फाइंड आउट डॉट प्रोडक्ट? कैसे करते हैं? आई कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी व्हाट 3. जे को करेंगे, जे से ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, प्लस 2 लैम्डा. एंड के को करेंगे किससे? 9 को करेंगे के कंपोनेंट से, दैट विल बी 27. दैट इज इक्वल टू 0. एंड यू विल हैव 2 लैम्डा प्लस 30 इज इक्वल टू 0. एंड द लैम्डा विल बी व्हाट? लैम्डा विल बी व्हाट? -15. और -15 देख लो कहां पे आपका आंसर आ रहा है. दैट इज व्हाट? ऑप्शन नंबर बी. एंड द ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7. आई होप इट इज क्लियर. पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. आपको सॉल्व करना है इसको, और गिवन दैट दिस इज इक्वल टू दिस मींस यू नीड टू फाइंड आउट योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन. चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं. x क्यूब y dx इक्वल टू dy. वी कैन सी लाइक क्लियरली दिस इज क्वेश्चन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल. दिस इज क्वेश्चन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल. वी कैन सेपरेट. सो हाउ कैन वी राइट? x के साथ x वाले को dx के साथ ही रख लेते हैं, एंड वी मूव योर y विद द dy. आफ्टर दैट यू व्हाट नीड टू टेक? यू नीड टू टेक इंटीग्रल. और x क्यूब का इंटीग्रल क्या होता है? दैट इज x4/4. ये तो सब अब आता है. एंड dy का क्या हो जाएगा आपके पास? log y. log y के साथ प्लस में क्या लगा देंगे? सॉरी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे. बट उसने हमसे जनरल नहीं पूछा. ही इज आस्किंग फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एंड फॉर दैट ही इज गिवन द कंडीशन आल्सो कि y क्या है? y आपके पास 1 है और x इक्वल टू क्या है? 1 है. ठीक है, तो रख दीजिए जरा वैल्यू. x के प्लेस पे क्या आ जाएगा? इट विल बी 1/4. इट विल बी log of 1 एंड प्लस c. यू नो व्हाट इज log of 1? log 1 क्या होता है? 0 होता है. तो c का वैल्यू कितना है बेटा जी? 1/4. एंड पुट इट बैक in the your general solution. That will give me x cube by 4 is equals to log y plus 1/4. आपको ऐसा क्वेश्चन में ऑप्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा. तो क्या what you need to do? आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे आएगा? It will give me log of y is equals to x to the power 4/4 minus 1/4 which is equals to x to the power 4 minus 1 divided by 4. इतना तो समझ में आता है. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख दे रही हूँ ऊपर. So log y का वैल्यू कितना आया? You will have x to the power 4 minus 1 divided by what? 4. Now what you need to do here? अगर मैं दोनों तरफ e से क्या कर दूं? बेस में लगा दूं तो कितना बनेगा? e to the power log of y बेस में लगाना है, e बेस में लगाना है. ठीक है, और ये बच जाएगा e to the power. ये सब भी पूरा पावर में चला जाएगा. और आपको पता है what is e to the power log? क्या होता है बेटा जी? That is equals to 1. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? You will have y here and here you will have e to the power x to the power 4 minus 1 divided by 4. So now you can match. Do you have such kind of answer? Yes. y है सबके तरफ, y भी है. अब ढूंढते हैं e भी है सबके बेस में. हमें चाहिए x to the power 4 minus 1 divided by 4. तो कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पे तो 3 आ रहा है, तो ये होगा नहीं, ये अकेला है. यहाँ पे माइनस का साइन आ गया. So option B will be the correct option for question number 8. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ फटाफट से. आपको y दिया है. You need to find out first derivative of the question. थक गए? बड़ी जल्दी थक गए? थकना नहीं है बेटा जी, थकना नहीं है. बहुत कम टाइम बचा है एग्जाम्स में. चलिए, लॉग की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी. क्या होती है? लॉग ऑफ a ऑफ b अगर आपको दिया है, दिस यू कैन राइट लॉग ऑफ b, और a को हम ले जाते हैं नीचे, यू कैन राइट दिस लॉग ऑफ a. ये दिस इज द वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग. ठीक है, तो इसको हाउ कैन यू राइट? यू कैन राइट लॉग ऑफ x डिवाइड बाय लॉग ऑफ a. अब a की वैल्यू मतलब है a इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इट्स अ कांस्टेंट टर्म. So we need to find out its derivative. What will be derivative? अब log 1 by a है, log of a तो बाहर ही रहेगा because it is constant. और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा जी? That will be 1 by x. तो आप देख लीजिए 1 by x of log a. Which option is correct? Option A number A will be the correct answer for question number 9. बढ़ते हैं question number 10 की तरफ. Which of the following statement is true for this function? देखिए, अगर आप इतनी जल्दी थक जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? How will you solve your paper of 3 hours? अगर आप इतनी जल्दी थकने लगे तो पेपर में बोर्ड में क्या सो जाएंगे बैठ के? नहीं ना. इसलिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. देखिए, सीधी सीधी सी बात है. अगर हमको कोई काम करना है तो रो धोके नहीं करिए, उसको हंस के करिए, उसको एंजॉय करके करिए. बी पॉजिटिव इन योर थॉट्स. आप जितना नेगेटिव होंगे उतनी चीजें आपके साथ नेगेटिव होती चली जाएंगी. बात समझ में आ रही है? सो अगर नींद आ रही है, थोड़ा पानी पी लो, फेस वॉश कर लो अच्छे से. ठीक है, खाना पीना कुछ लेके बैठा करो. मैं हमेशा बोलती हूँ मम्मी पापा को बोलो भाई कमरे में थोड़ा सा खाना पीना कर दिया करे, और अंदर से अपना लैच लगाओ और अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो. जब मन करे सो जाओ, जब मन करे उठ जाओ, लेकिन पढ़ना जरूर है. अब ऐसा नहीं कि बस शाम को 9 बजे सो गए और सुबह 9 बजे उठ रहे हैं. नहीं, इस टाइम में व्हेन योर बोर्ड्स आर लाइक आपके बिल्कुल पास में आ गए हैं, यू नीड टू लाइक स्लीप ओनली मैक्सिमम 6, नॉट मोर देन 6. You can take power nap of 10 to 15 minutes in between the day.
बट उससे ज्यादा नहीं बेटा, अगर उससे ज्यादा सोओगे तो इट विल हार्म योर अ लॉट, लाइक यू विल फील स्लीपी ऑलवेज। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, पानी पीजिए, कॉफी पीजिए, चाहे जिसको जो मन करता है वो खाइए पिए, और पढ़ना जरूरी है। ठीक है, मीन्स अगर आप बाहर भी जा रहे हैं ना मार्केट में, आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए कि भाई आज मुझे क्या पढ़ना है, मैंने क्या पढ़ा था, क्या नहीं है, व्हाट स्ट्रेटेजीज यू नीड टू फॉलो, सब चलता रहना चाहिए। ये 1-2 महीने की बात है, आफ्टर दैट इट विल बी ओवर। ठीक है, एंड व्हेन यू विल सी योर रिजल्ट यू विल बी हैप्पी, एंड ट्रस्ट मी आई विल बी मोर हैप्पी देन यू। ठीक है, और उसके बाद मैं मिठाई भी खाऊंगी, आप लोग लेके आना मेरे लिए। ठीक है, चलिए, हालांकि मुझे ज्यादा मिठाई पसंद नहीं है, ठीक है, पर लेके आएंगे तो मैं खाऊंगी फटाफट से। चलिए ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जितने मैं आपके साथ करती हूँ आपको मेरे साथ करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस फंक्शन। चलिए सबसे पहले क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है ना। चलिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में व्हाट यू नीड टू चेक, वी नीड टू चेक फर्स्ट डेरिवेटिव। व्हाट इज फर्स्ट डेरिवेटिव इन दिस क्वेश्चन? 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, यू फाइंड आउट स्टेशनरी पॉइंट्स। टू फाइंड आउट स्टेशनरी पॉइंट यू कैन राइट लाइक दिस, x स्क्वायर माइनस x माइनस व्हाट 6 इक्वल्स टू 0. What will be the factors of this? It will be x minus 3 and x plus 2. I hope it is clear. So x की क्या क्या वैल्यू है बेटा? It will be 3 and x equal to minus 2. इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका जो नंबर लाइन था माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यू हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 3 पार्ट्स रादर, माइनस 2 to 3. तो एक पार्ट ये बना फर्स्ट वाला, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2. दूसरा बना कितना? It will be minus 2 to 3 and the third one will be 3 to infinity. So we have 3 cases here. अब यहाँ पे हमको चेक करना है कि फंक्शन कहाँ पे कितना वैल्यू देगा, एंड दैट विल डिसाइड व्हाट, दैट विल डिसाइड साइन ऑफ योर एफ डैश। एफ डैश का जो भी साइन होगा उसके अकॉर्डिंग टू बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। चलिए अब अगर फर्स्ट वाले की बात करें तो विल हैव व्हाट, सपोज माइनस 3 भी है तो माइनस 3 पुट कर लेते हैं। सो माइनस 3 अगर आप यहाँ पे करेंगे पुट तो कितना आएगा आपके पास, कहाँ पे पुट करना है? एफ डैश में। या तो आप 12 वाले एफ डैश में कर लो या इसमें कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उस दोनों से आंसर सेम आएगा आपका, यहाँ से भी कर सकते हो आप इसमें भी। सो अगर आप माइनस 3 पुट करते हैं, यू विल हैव व्हाट 9 माइन प्लस 3 माइनस 6, यू आर गेटिंग व्हाट, यू आर गेटिंग पॉजिटिव वैल्यू। सो वैल्यू इज व्हाट, पॉजिटिव, और वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो फंक्शन इज सपोज टू बी व्हाट, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब बात करते हैं इधर, इनके बीच में कौन सा आता है, इनके बीच में 0 आता है, तो 0 पुट कर लेते हैं। 0 माइनस 6, व्हाट आंसर यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग माइनस 6। आप किसी भी पॉइंट पे चेक करिए, दिस इज गारंटी आई एम गिविंग यू, कोई भी पॉइंट उठाइए इन बिटवीन दोस एंड लाइक लीव योर एक्सट्रीम पॉइंट्स। -2 और 3 नहीं लेना, वहां पे तो वो 0 देगा आपको। इट इज लेसर देन 0 तो इट इज डिक्रीजिंग हियर। अब इसकी बात कर लेते हैं 3, इट विल बी व्हाट, सपोज मैंने 4 लिया, ठीक है, सपोज मैंने 4 लिया, इट विल गिव मी 16 माइनस 4 माइनस 6, अगेन वी आर गेटिंग 16 माइनस 10 व्हाट ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन इज व्हाट, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया उसने, बोला कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी टू 2, ये तो ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे, 3 टू इन्फिनिटी, ये भी ठीक है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, और कहाँ पे बोला उसने, डिक्रीजिंग इन व्हाट -3 to 2, ये बिल्कुल भी ठीक बोल रहा है। अब नाइदर इंक्रीजिंग, ये तो नहीं होगा, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हुआ, 1 भी ट्रू है, क्या है, क्या हुआ, 1 2 3 and 4, तो क्या बोल रहे, कौन सा स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस। अब अगर ऑप्शन इसमें देखें आप तो कौन सा होगा, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन आर। कैसे, पहले फंक्शन क्या हुआ, पहले फंक्शन इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ और फिर इंक्रीज हुआ। तो अगर आप इसका ऑप्शन देखें बेटा, देखो 1 और ट्रू, तो अगर इस तरह का ऑप्शन कभी फंस जाए आपको 1 and 2 आर ट्रू, ऐसा तो नहीं है ना, ये तो सारे ट्रू है, ये भी नहीं हो सकता, 2 and 3 ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, 2 and 4 ये भी नहीं हो सकता, तो आप ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, आप लगाएंगे ऑल आर ट्रू, ठीक है। अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन फंस जाए, क्योंकि इसका ऑप्शन अगर देखा जाए तो 1 2 and 3, ठीक है, कुछ इस तरीके का होना चाहिए, तो आप इसमें क्या लगाएंगे, ये तो ऑप्शन आपके पास तो नहीं है, तो व्हाट यू नीड टू टेक, यू विल टेक ऑल आर ट्रू, क्योंकि आप इसमें 1 2 नहीं ले सकते, 2 3 नहीं ले सकते, 2 4 नहीं ले सकते। बात समझ में आ रही है? अगर कभी इस तरीके से लगे तो जब ऐसे दिया ऑल आर ट्रू, तो ऑप्शन ना बहुत बार ये वाले क्वेश्चन पे ना होता भी है कि जब नीचे ऑल लिखा हो ना कभी भी, तो ऑल वाले ऑप्शंस पे प्लीज फोकस करिएगा, ठीक है। सो देयर विल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑल आर ट्रू। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कोई क्वेश्चन होता है तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है कि आप लोग अटक जाते हैं उस पर थोड़ी देर के लिए। चलिए
फटाफट से इससे बात कर लेते हैं। आपको ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट दिए। व्हाट डू मीन बाय इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टू ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब उसने हमसे वैल्यू किसकी पूछी है? ही इज आस्किंग मी द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इफ यू सिंप्लीफाई दिस, व्हाट विल बी आंसर ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? दिस using De Morgan's law we can write A dash intersection B dash is nothing but what, probability of A union B dash. And how will you find of this? कैसे निकालेंगे? This is nothing but probability of what, A union B. कैसे करें? ऐसे लिखते हैं, but 1 minus. ठीक है, अब 1 minus का मतलब ऐसे कर देंगे इसको। 1 minus का मतलब what is formula for this? This is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. यही होता है। बट डू वी हैव ए, अगर आप देखें हमें ए दिया है, हमें बी दिया है, डू वी हैव इंटरसेक्शन? नो। बट उसने क्या दिया है? उसने बोला कि इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। सो व्हाट विल बी द आंसर? वी कैन राइट लाइक दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वी कैन रिप्लेस द वैल्यू विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज वी आर गिवन दैट बोथ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए फटाफट से। व्हाट विल हैव? 1 माइनस, इट विल बी 3/5 plus 4/9 minus 3/5 into 4/9, and if you simplify it, this will cancel out with this, and you will have 1 minus of 3/5 plus 4/9 minus 4/15. This will be the answer. If you simplify, you will have 1 minus 35 divided by 45. आप simplify करिए इसको, ये कटेगा आपका 7 और 9 पे। You will have 1 minus 7. हाँ ठीक है, you will have here 9 minus 7 divided by 2, and this will, sorry, divided by 9, and you will have 2/9. This will be the calculation. Please cross check the calculations, and according to me answer will be D option for this question number 11. ठीक है, क्योंकि आपने देखिए सीधी सी बात है, अगर आपकी इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं देता कि इंडिपेंडेंट है, देन यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। या तो उसको वैल्यू देनी पड़ेगी, लेकिन उसने वैल्यू ना देके उसने बता दिया कि ये इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। एज दे आर इंडिपेंडेंट, तो आप इंटरसेक्शन की जगह पे you can multiply both the events. That will be enough for this according to the definition of independency. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये बहुत सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ए और बी आपको दिया, ए कंटेन्ड इन बी। ए कंटेन्ड इन बी का मतलब है कि ए छोटे वाला है और बी क्या है, बड़े वाला है। बी इज द सुपरसेट, जो ए में आएगा और बी में भी आएगा। अब उसने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या रही होगी। क्या होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? ये होती है ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए सेम एज डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, अब एक बात बताओ, छोटा सेट ये है, बड़ा ये बड़े वाला सेट है। ठीक है, इसके अंदर एक छोटा सेट है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या रहा होगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन छोटा होगा कि बड़ा होगा? बिल्कुल छोटा होगा। सो इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए, एंड वी कैन कैंसिल आउट। आंसर विल बी 1 फॉर दिस ऑप्शन। दिस क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। ये तो बात हो गई इंटरसेक्शन की। अगर वो यूनियन पूछता मेरे से तो क्या आंसर आता? यूनियन का मतलब होता द बिगर वन विच इज इक्वल टू बी। क्लियर है? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इवैल्यूएट। अब बोलोगे मैम इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया उसने 1 मार्कर में, बड़ा नहीं है, छोटा सा है। देखिए 0 to 2 पाई है, हमें क्या करना है, e to the power sin x डिवाइड बाई 1 plus 3 sin x। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हम करते हैं, हम फोर्थ प्रॉपर्टी लगाएंगे सीधी सी, क्योंकि ना मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फोर्थ प्रॉपर्टी से सॉल्व होंगे। आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आंख बंद करिए, फोर्थ प्रॉपर्टी लगाइए। व्हाट इज दैट? सम ऑफ योर लिमिट्स माइनस योर वेरिएबल। तो वो क्या हो जाएगा, दिस विल गिव यू 0 to 2 पाई 3 ऑफ साइन ऑफ, मैं सीधा लिख दे रही हूँ, क्या देगा यहाँ से, हमें चाहिए साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स। साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स मतलब यू आर लैंडिंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा, सॉरी नॉट इन फर्स्ट, सॉरी इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। 2 पाई माइनस दिस, ये 2 पाई होता है और माइनस कर रहे हो तो यू आर लैंडिंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, दैट इज सपोज टू बी नेगेटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा e to the power माइनस साइन डिवाइड बाई, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस e to the power माइनस साइन। आई होप इट इज क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे 0 to 2 पाई, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 sin x, और इधर से लिख सकते हैं 1 plus 1 डिवाइड बाई 3 sin x। दिस यू कैन राइट। चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस वाज आवर फर्स्ट इक्वेशन, पहले इसको कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे आप अगर, तो 0 to 2 पाई, if I am not wrong, you will have 1/1 plus e to the power sin 3x। उससे क्या होगा, क्योंकि जब आप एलसीएम लेंगे ये इधर जाएगा और डिनोमिनेटर विल कैंसिल आउट विद द डिनोमिनेटर।
क्लियर है? चलिए बात करते हैं आगे। नाउ टेक दिस एज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ एड, उसके बाद क्या करते हैं, द नेक्स्ट एल्गोरिथम, अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, यू नीड टू एड योर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो अब करेंगे तो लेफ्ट विल गिव मी व्हाट, i plus I will be equals to 2i, integral 0 to 2 pi, and if you add them, you see denominator is same for both, so we can add the numerator also, 1 plus e to the power sin 3 sin x divided by 3 of sin x. I hope it is clear. With the dx, this will cancel out with this, so 2i का वैल्यू कितना हो जाएगा, it will be integral of what, 2 pi 0 to dx. ठीक है, ये बात इतना आएगा। और अगर आप इसको dx का इंटीग्रल क्या होता है, दैट इज x, तो आप यहाँ पुट करिए, दैट विल बी 2 pi minus 0, और 2 pi minus 0 का मतलब यू विल गेट 2 by 2 को कैंसिल है, और i का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, i का वैल्यू भी, आंसर विल बी pi, एंड अकॉर्डिंगली योर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 13। आई होप इट इज क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ फटाफट से। ये सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा। अब क्या दिया है, tan x दिया है, tan x माइनस 1/3 log x, इसका देख के कर दोगे आप, माइनस 2/x। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर। अगर आप इसमें देखें, यहाँ पे सीकेंट है, यहाँ पे सीकेंट है, सिर्फ यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर है और नन ऑफ दीज है। अब नन ऑफ दीज का ऑप्शन है, तो यहाँ पे देख के मत लगा देना, क्या पता आपने गलत किया हो। ठीक है, तो ये ए और सी नहीं हो सकते, हाँ बी और डी जरूर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको गलत नहीं आता तो हम नहीं कर पाएंगे। tan का क्या होता है, tan का होता है सीकेंट स्क्वायर, 1/3 कांस्टेंट है, log x का क्या होता है, 1/x होता है, और माइनस 2/x स्क्वायर का क्या होता है, दैट इज माइनस 2/x का क्या होगा, वो तो कांस्टेंट है, 1/x का क्या होगा, माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर, और माइनस माइनस विल बिकम प्लस, इट विल गिव मी दिस। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। एंड प्लीज फोकस ऑन दिस ऑल्सो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब कोई भी लाइन इक्वेशन ऑफ पासिंग थ्रू द पॉइंट का मतलब है किस तरह की होती है, x माइनस x1, मतलब ये प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू y माइनस 2 इक्वल्स टू z प्लस 4, यही होती है इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 बाई a, दिस इज इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइड बाई b, एंड देन यू हैव z माइनस z1 डिवाइड बाई c। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन व्हेन इट इज पासिंग थ्रू द व्हाट, सम पॉइंट एंड inclined to some angles, or we can say that we are given the direction ratios parallel to some other vector। ठीक है, एंड आगे भी दिया है, इट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस का मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब हुआ है कि आपके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो सब क्या है, वो सब बराबर है, वो सब क्या है, बराबर है। तो इसको हटा दीजिए और सी को हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज डिफरेंट है। हाँ, इनमें नहीं है कुछ भी, तो उनमें हम 1 1 लगा सकते हैं नीचे, बट अब डिपेंड करेगा किस पे, अब पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा। अगर आप यहाँ पे देखें, ये x माइनस 3 है और ये क्या है, x प्लस 3, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। बात क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ फटाफट से। इंटीग्रल माइनस 1 to 1 e to the power x square 1 plus 4 tan x। यहाँ पे क्या करेंगे, हाउ विल यू सॉल्व इट, बताइए। देखिए सबसे पहला काम होता है इसमें, इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, x ऑफ माइनस x चेक करते हैं, सॉरी माइनस ऑफ चेक करते हैं कि अगर वो हमारा माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया तो हम लिख देंगे सीधा सीधा कि वो ओड फंक्शन है और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं आया देन वी नीड टू सिंप्लीफाई दैट, ये करना होता है। चलिए अगर आप इसमें नॉर्मली देखें, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो अगर आपने माइनस एक्स पुट भी किया तो ये क्या देगा हमको, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, और ये वाला भी क्या देगा, ओड फंक्शन है। साइन बाई कॉस माइनस बनेगा, e to the power 4 tan बनेगा, बट यू कैन नॉट टेक दैट, ये तो दे तो देगा, ये माइनस tan दे देगा, बट उस माइनस को आप कॉमन कैसे निकालोगे, बात समझ में आ रही है। तो ये आप माइनस कैसे निकालोगे, तो ये इससे तो नहीं होगा। सो व्हाट यू नीड टू डू, उसके बाद आपके पास एक ही चीज बचती है, तो आप क्या करते हैं, आप सम ऑफ द लिमिट्स माइनस वही पुट करना है इसमें, बाकी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। x टेंड्स टू व्हाट विल बी दैट 1, अब ये 1 माइनस 1 तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x, मतलब क्या हुआ, आपको क्या x को आपने क्या पुट करना है, आपको x को आपने माइनस x पुट करना है, सिर्फ ये चीज आएगी। ठीक है, क्योंकि ये अगर आप देखो तो ये होता है ना वेरिएबल माइनस सम ऑफ द लिमिट्स माइनस x। चलिए पुट कर देते हैं, कोई बात नहीं, इसको हम मान लेते हैं i इज इक्वल टू, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ये भी मान लेते हैं इसको। और अगर आप इसको पुट करेंगे, यू विल हैव इंटीग्रल ऑफ माइनस 1 to 1, इट इज 3 ऑफ x स्क्वायर, बिकॉज माइनस x को x स्क्वायर बना देगा, और 1 प्लस 4 ऑफ, अब tan ऑफ माइनस x विल गिव मी, tan ऑफ माइनस x होता है माइनस ऑफ tan x। क्लियर है बात। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जब जब पावर नेगेटिव में आएगी आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा उसको।
तो अगर आप में देखें तो वी कैन राइट दिस, और इसको हम लिख सकते हैं 1/4 to the power 10। सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ, 1 तो ऐसे रहेगा। सो नाउ इफ यू टेक एलसीएम विद 1, यू विल गेट 4 to the power 10x प्लस 1, और नीचे आएगा ये वाला टर्म जिसको हम ले जाएंगे ऊपर बेटा, और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। आई होप दिस मच सिंप्लीफिकेशन यू नो। अब इसको मान लेते हैं 2, उसके बाद हमको क्या करना होता है, उसके बाद हम दोनों को ऐड करना होता है। देखो एडिशन तो करना पड़ेगा। सो यू विल हैव i प्लस आई विल गिव यू 2i, और आपके पास आ जाएगा 0 to what, सॉरी नॉट 0, इट इज -1 to 1। ठीक है, और अगर आप फिर से देखें दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए, दोनों के डिनोमिनेटर हो गए सेम। सो वी कैन ऐड द व्हाट न्यूमरेटर आल्सो। सो 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर दोनों में क्या है, कॉमन है। सो वी कैन टेक 1 प्लस 4 to the power 10x, सॉरी ये नीचे नहीं था, ये ऊपर पावर में था। ठीक है, जस्ट मेक करेक्शन ऑफ दिस। चलिए 10x, और नीचे भी क्या है, वी हैव 1 प्लस 4 to the power 10x dx। जस्ट सिंप्लीफाई दीज टू, सो यू विल हैव व्हाट 2i is equals to integral -1 to 1 thrice बाहर ये है और x square dx, this much you are left with, and if you simplify this you will have 2i is equals to 3 of x cube divided by 3, you will have -1 to 1, this will cancel out with this, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट को जब पुट करेंगे, you will have 1 of plus 1, this is equals to what 2i is equals to कितना आंसर आया, 2 आया, और सिंप्लीफाई करके i का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16। आई होप इट इज क्लियर। ये फोर्थ प्रॉपर्टी ना बड़े कमाल की चीज है, इसके बिना क्वेश्चंस होते नहीं है। चलिए ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेते हैं। कैसे, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया है, बी दिया है, डॉट दिया, आपको क्रॉस निकालना है। कैसे निकालेंगे फटाफट बताइए, कैसे निकालेंगे। चलिए ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, ए डॉट बी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। चलिए ये तो आपको पता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें क्रॉस का वैल्यू चाहिए। तो क्रॉस का मतलब क्या होता है, जरा वो भी लिख लेते हैं थोड़ा सा। ए क्रॉस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। वेक्टर एन कैप होता है, बट दैट इज अ यूनिट वेक्टर, सो नो नीड टू राइट दैट। चलिए हमें निकालना है इनका वेक्टर। अब क्या करते हैं, मैं जरा क्या कर लेती हूँ, 1 + 2 कर लेती हूँ, 1 + 2 कर लेती हूँ, एंड बाय स्क्वायर भी कर दीजिए जरा उनका। 1 + 2 को ऐड करिए, बट उनका स्क्वायर भी कर दीजिए। तो दैट विल गिव मी ए डॉट बी होल स्क्वायर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड प्लस ए ऑफ क्रॉस बी होल स्क्वायर। अगर आप देखें इनका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा मैग्नीट्यूड का, दिस विल बी ए स्क्वायर, दिस विल मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। और अगर आप देखें दोनों में ये चीज क्या है, कॉमन है, सो वी कैन राइट दैम साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये दोनों का वैल्यू क्या हुआ बेटा, दिस विल बी 1। आप यहाँ पे जरा वैल्यूज पुट करिए। अब डॉट आपको कितना दिया, 24, 24 मीन्स 24 स्क्वायर, एंड यू नीड टू फाइंड आउट योर क्रॉस। स्क्वायर रखते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे। इसका मतलब इट विल बी 20 ऑफ स्क्वायर into this will be of 4 square. So if you simplify this, how much it will be, a cross b whole square. तो अगर आप इसको simplify करते हैं, you'll have what, you'll have 400 into 16 minus 2 4 का square will be 576, and if you simplify it further, what you'll have from here, सिंप्लीफाई करिए जरा, दिस विल बी हाउ मच यू विल गेट, you'll have 4, you'll have 2, you'll have what, 8 and 15 ना, 8 यहाँ पे, sorry 13, and this will be what, 8, and you'll have 5 here. So you need to find out, ये हटाइए, आपको फाइंड आउट करना है इसका क्या, स्क्वायर। I think option is not given according to the question. Okay, but this method will be this, ठीक है। इसका ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द आंसर तो नहीं दिया हुआ, क्योंकि अगर आपका देखा जाए ये ऑप्शंस मैच नहीं करेंगे इससे। बीस का स्क्वायर तो 400 ही होता है ना, और जैसे 400 4 का आपके पास आ जाएगा 16, सो
यू 6400 माइनस दिस। चलिए ठीक है, यू देखिए अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन आएगा पेपर में तो यू विल गेट फुल मार्क्स, कोई इसमें इशू नहीं है। अगर आपके पास कभी क्वेश्चन में कोई गलत हो गया क्वेश्चन, यू विल गेट फुल मार्क्स दैट। बट आपने प्रोसीजर सही किया है, इसीलिए मैं बोलती हूँ जस्ट डू प्रोसीजर, आपके पास मतलब पता चल जाता है आपको। ठीक है, सो दिस विल बी, अब ये देख लीजिए किसका है, मेरे हिसाब से तो मुझे लग नहीं रहा है किसी का होगा, तो आंसर विल बी ऑफ दिस काइंड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जरा। डोंट वेस्ट योर टाइम इन वन क्वेश्चन। फंक्शन आपको दिया है दिस फंक्शन मैंने बोला था कि इस तरह का फंक्शन पेपर में क्वेश्चन जरूर आने वाला है। फंक्शन क्या है आपके पास ये दिया हुआ है और इट इज कॉन्टिन्यूअस आल्सो, तो आपको k का वैल्यू निकालना है। एंड इन द प्रीवियस 3 पेपर्स आल्सो वी हैव सच काइंड ऑफ क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड। तो क्या होता है कॉन्टिन्यूटी का मतलब, लिमिट x टेंड्स टू c f of x इक्वल्स टू f of c, यही होता है। तो अगर हम यहाँ से देखें लिमिट हमें किस पे चेक करनी है, लिमिट वी नीड टू चेक f of x टेंड्स टू पाई बाय 2, और टेंड्स टू पाई बाय 2 में फंक्शन क्या दिया है, k of cos x डिवाइड बाय व्हाट, pi minus 2x, and that is equals to what you are given, this is 3. So we need to simplify just this left hand side. तो अगर आप इसको पुट करेंगे डायरेक्टली you will have 0 by 0 फॉर्म, और 0 by 0 फॉर्म कैसी होती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। इसका मतलब तो क्या हुआ बेटा, हमको इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। एंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, मैंने वेरिएबल चेंज वाला आपको अलग से वीडियो भी बना के देखिए दिया हुआ है, आप जरा प्ले लिस्ट में जाके चेक करिएगा कि हाउ टू चेंज वेरिएबल, हाउ टू चेंज लिमिट को कैसे चेंज करें। आप वो वीडियो जाके देखिए, आपको अच्छी सी चीजें समझ में आएंगी। ये आपके पास है, तो अगर आप देखें लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 आपको दी हुई है, तो हाउ डू यू नीड टू राइट दैट, जस्ट शिफ्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, टेंड्स टू 0 बनाइए, इसको y रखिए। इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू हो जाएगा y प्लस पाई बाय 2, और वी कैन से पाई बाय 2 प्लस y, और y भी क्या हो जाएगा, y टेंड्स टू 0 हो जाएगा। एंड कंप्लीटली यू विल सॉल्व, यू विल चेंज योर क्वेश्चन आल्सो, लिमिट y टेंड्स टू 0, दैट विल बी k ऑफ cos ऑफ, it will be 2 pi plus y divided by pi minus 2 into pi by 2 and minus of 2y equals to what, this is you are given equals to 3। तो आपको ये सॉल्व करना है। आप तो आपके पास आएगा लिमिट y tends to 0, what this will give me, this will be k of, what is k of pi by 2 plus s, that is what, this is minus of sin y। ठीक है, and what is that, this will cancel out, ये भी हट जाएगा आपके पास, you left minus of 2y, this is equals to 3 and this will cancel out with this। तो अगर आप यहाँ से देखें तो we are left with limit y tends to 0, k of sin y divided by 2y equals to 3। और अगर आप देखें ये चीज क्या दे देगी, इसका वैल्यू कितना होगा, वैल्यू ऑफ दिस विल बी इक्वल्स टू 1, अकॉर्डिंग टू आर लेफ्ट k by 2 on the left hand side and equal to this is 3 on the right hand side। तो इसका मतलब हुआ you will have k equals to 6 equal will be the answer for this question and option B will be the करेक्ट। बात समझ में आती है भाई। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ फटाफट से। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेक्शन ए। 18 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, अब असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। असर्शन आपने क्या दिया हुआ है कि एक सेट दिया हुआ है जिसने किसने रिलेशन बनाया है, 1-1 रिलेशन है हमारा, और भाई 1,6 है और भाई 6,1 है। ठीक है, ये रिलेशन उसने डिफाइन किया है। वो बोल रहा है कि जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक की हम बात कैसे चेक करते हैं, सिमेट्रिक की हम बात करते हैं कि जो भी हमें एलिमेंट्स दिए हैं सबके सब एलिमेंट्स का इमेज होना चाहिए। जैसे 1 का 1 कैसे चेक करते हैं सिमेट्रिक, कि a कॉमा b अगर सेट में अगर रिलेशन में है तो वी शुड हैव b कॉमा a आल्सो। ठीक है, इन द रिलेशन। तो अगर हम 1-1 उठाएं तो 1-1 का इमेज भी क्या 1-1 होगा, दिस इज ट्रू फॉर सिमेट्री। 1-6 उठाएं तो 6-1 का इसका इमेज ये होता है, ये भी है। 6-1 का 1-6 होता है, मतलब तीनों एलिमेंट्स के इमेजेस यहाँ पे मिरर इमेजेस यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक है। इसका मतलब क्या, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो ट्रू है। अब बात करते हैं, सॉरी रीजन की हमारा असेसन था, अब बात करते हैं रीजन की। रीजन क्या दिया है, relation is said to be symmetric if for a comma belongs to R, b comma a should also belongs to R for every a comma belongs to the set। तो यही तो डेफिनेशन हमने अभी अप्लाई करके देखी है। देखो मैंने जो अभी लिखी थी यही तो लिखी थी सिमेट्रिक की डेफिनेशन। मतलब a भी ट्रू हुआ और b भी ट्रू हुआ, और जो रीजन हमने देखा है वो भी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या है, a है। इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ऑप्शन ए विल बी द ट्रू आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। आई होप इट इज क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। Inverse of the sine function is defined in the interval inverse of the sine function। inverse of sine function क्या होता है, ये होता है, और ये कहां से कहां डिफाइन होता है भाई, ये तो -1 से 1 डिफाइन होता है ना, इसका रेंज तो ये होता है ना, डिफाइंड इन द इंटरवल, इस तरह का रेंज होता है ना। और उसने ऐसे क्या लिखा है, इनवर्स ऑफ द साइन फंक्शन इज व्हाट डिनोटेड बाय दिस, ये होता है
सिर्फ साइन इनवर्स होता है? नहीं ना, ये तो गलत है। इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा ट्रू हुआ? ए, बी, सी और डी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज जो इसका ये असर्शन दिया है ना वही गलत है, यही फॉल्स है, यही गलत है। ठीक है, असर्शन फॉल्स है। इसने गलत लिखा है, ये ठीक है, स्टेटमेंट तो ठीक है। इनवर्स ऑफ द साइन इनवर्स फंक्शन इज साइन इनवर्स, यहाँ पे उसको एक्स लिखना चाहिए, एक्स का थोड़ा मिसिंग था, तो ये ठीक है, इसको ठीक करिए जरा। रीजन इज करेक्ट बट असर्शन इज व्हाट? फॉल्स। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपने इसको भी फॉल्स लिया, इसको भी फॉल्स लिया, तो फिर ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता हमारे पास। बात समझ में आ रही है? तो ओनली ए इज द असर्शन इज फॉल्स हियर, बट रीजन इज ट्रू, ट्रू है, क्योंकि हमने साइन इनवर्स लिखना चाहिए, यही करेक्शन बाकी थी। एंड अकॉर्डिंगली योर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। चलिए, अब हमारे 2 मार्कर क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। हाउ टू सिंप्लीफाई दिस। अब ये है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, 3 फंक्शंस इन मल्टीप्लिकेशन विद द इंटीग्रल साइन। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बोलिए फटाफट से? विल अप्लाई साइन ऑफ ए इनटू साइन ऑफ बी, एंड व्हाट इज दैट? व्हाट इज साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी? क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज ऑफ व्हाट? कौन बताएगा? माइनस ऑफ कॉस ऑफ, क्या होता है हमारे पास? सम ऑफ बोथ, ये होता है, एंड देन माइनस ऑफ योर एंगल्स, ये फॉर्मूला होता है। बट इसमें एक चीज आती है, क्या आती है बताइए? क्या क्या छोड़ा मैंने? दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू ट्वाइस। ठीक है, अब क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे क्वेश्चन में नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, पहले ये करेंगे। तो ये अगर किया तो इंटीग्रल देगा 1/2 बाहर रखेंगे, और ये देगा ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ 2x, इसको लेंगे कंबाइन करेंगे और साइन 3x को बाहर रखेंगे, बिकॉज जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास सिर्फ 2 फंक्शंस का होता है। ठीक है, बोर हो रहे हैं? बोर नहीं होना। क्या करूं तुम्हारी बोरियत के लिए? आप कुछ कर नहीं सकते ना, तो अगर ऑफलाइन क्लास होती तो शायद कुछ कर लेते, बातें कर लेते, कुछ भी एंटरटेनमेंट कर लेते। 11:35 हो रहा है, रात के 11:30 बजने वाले हैं, बज गए हैं, सॉरी बजने वाले नहीं, बज गए हैं, भूत आने वाले हैं असलम। ठीक है, तो कोई बात नहीं, भूतों को मैथ सिखाएंगे, वो भी देख के भाग जाएंगे इंटीग्रेशन को। ठीक है, चलिए, तो चलो थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। 1/2 ऑफ, अगर आप यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे, इट विल गिव मी व्हाट? 2 sin x ऑफ sin 2x। ये हमारा ए एंगल ए एंड दिस इज एंगल बी, तो यहाँ पे पुट करिए जरा, क्या होगा? अगर मैं इसको माइनस को अंदर ले जाऊं तो हम पहले क्या कॉस ऑफ दोनों का डिफरेंस लिख सकते हैं। देखिए, ये इसको अंदर ले जाते हैं, ये माइनस दे देगा, अगर अंदर ले जाऊं तो, और ये वाला बना देगा प्लस। तो पहले हम डिफरेंस लिख लेते हैं, x माइनस 2x। x माइनस 2x का मतलब हुआ माइनस ऑफ x, और कॉस ऑफ माइनस x क्या होता है? x ही होता है, माइनस। अब फिर से हम दोनों का क्या लेंगे? सम लेंगे, दिस विल बी कॉस ऑफ 3x, इंटीग्रल साइन को बंद के बंद, इसको ब्रैकेट को बंद करते हैं, विल हैव साइन 3x हियर एंड dx। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/2 ऑफ, नाउ अगेन वी नीड टू व्हाट? अब हम इसको थोड़ा क्या कर देते हैं, थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं विद दिस ऑल्सो। एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, एक बार इसके साथ करिए, तो यू विल हैव साइन ऑफ 3x हियर dx माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos 3x इंटू साइन 3x dx। क्लियर है बात? अब फिर से, क्योंकि तो अगर 2 बार फंक्शन आता है ना, तो वंस जस्ट अप्लाई द प्रॉपर्टी एंड गेट योर आंसर। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 बार आ रहा है, तो व्हाट यू नीड टू डू? यू नीड टू अप्लाई योर प्रॉपर्टी अगेन व्हाट यू नीड टू हैव, व्हाट यू हैव हियर नाउ? अब है फॉर्मूला cos x और sin y का। cos x sin y का फॉर्मूला क्या होता है? कौन बताएगा? फटाफट से बता दो। यू हैव cos of x sin of y। फिर से पहले बात तो क्या करना पड़ेगा? आपने ट्वाइस करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? दिस इज साइन ऑफ a प्लस बी, इस बार साइन आता है, और माइनस ऑफ साइन a माइनस बी। देखिए, यू शुड रिमेम्बर दिस ऑल दिस आइडेंटिटी, आपको पता होनी चाहिए सब। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन क्या दे देगा मुझे? ये मैं छोड़ देती हूँ बना के यहाँ पे, आई इट विल बी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ, कितना देगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ द एंगल, सम ऑफ द एंगल्स का मतलब साइन ऑफ, कितना आएगा? साइन ऑफ व्हाट? सम कितना हो जाएगा? 4x माइनस, फिर साइन ऑफ कितना देगा? डिफरेंस, तो x माइनस साइन 2x, कितना? माइनस 2x हुआ, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, so it will be sin 2x। अब देखो 1/2 कॉमन है, तो मैं इसका भी इसके साथ ही लिख देती हूँ, बिकॉज सेम ही है। अब फिर से साइन ऑफ कितना आ जाएगा? सम ऑफ द एंगल्स, तो इसका कितना आएगा? 3 + 3
6 एंड दैट विल बी 6x। दूसरे वाला कितना आया, डिफरेंस आएगा टाइम माइनस, तो कितना देगा ये, हाउ मच इट विल बी, बोले फटाफट से, ये माइनस लगा लेना जरा यहाँ, इट विल बी माइनस माइनस अगेन विल बी प्लस साइन 2x। ठीक है, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, वी आर लेफ्ट विथ जस्ट 1/this। अब एक चीज भूल गए हम, क्या क्या भूल गए बताओ, क्या भूले हम यहाँ पे, बताओ हम क्या बोले, हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करना भूल गए, किसको, 2 को। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये विल बी 1/2, दिस विल बी 1/2 एंड दिस विल बी 1/2। ठीक है, तो कितना आया यहाँ पे, इट विल बी 1/4। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आएगा साइन ऑफ 4x इंटीग्रल साइन के साथ, और क्या आएगा प्लस कितना है, साइन 2x है यहाँ से, और यहाँ से कितना आया, साइन 2x आया यहाँ से भी, नहीं नहीं ये तो 0 हो जाएगा बेटा, ये तो 0 हो जाएगा, दिस विल बी 0, साइन 3x माइनस 3x 0 होगा, दिस विल बी 0। और यहां से आएगा आपके पास साइन 2x और माइनस का साइन 6x dx। ठीक है, ये आएगा। अब नाउ बस आपको इंटीग्रल निकालना है इसका, इसका क्या हो जाएगा, 1/4 बाहर रहेगा, और cos साइन 4x का इंटीग्रल क्या होता है, दैट इज cos 4x डिवाइड बाय 4 प्लस साइन 2x का क्या होता है, cos 2x डिवाइड बाय 2, और साइन 6x का क्या हो जाएगा, cos 6x डिवाइड बाय 6 प्लस 6। दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से करिए, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फटाफट से हो जाते हैं, ठीक है, उसमें टाइम कम लगता है, तो वो जो टाइम आपका वेस्ट होता है ना दूसरी साइड में, वो फटाफट से कवर अप हो जाता है, उसमें कोई परेशान कर होने वाली बात नहीं है। अब इफ दीज 2 पॉइंट्स आर, आपको क्या दिए, कोलिनियर दिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अगर पॉइंट्स कोलिनियर है इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं सपोज इन दोनों को यूज करूं, सपोज फर्स्ट वाला और सेकंड वाले को मैं अगर यूज करूं, इफ आई फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस, इक्वेशन ऑफ लाइक AB, so what will be equation of AB? If I am not wrong, it will be x plus 1, it will be y minus 3 equals to z minus 2। मैंने अभी पीछे बताया था कैसे निकालते हैं, x minus x1 डिवाइड बाई, ये हमने लास्ट में भी किया था, ये होता है when it is passing through 2 points, z2 minus z1। This is how to find out equation of line when it is passing through 2 points। ये हो जाएगा, और नीचे कितना आएगा आपके पास, it will be minus of -4 plus 1, it will be -3, और ये हो जाएगा -1, और ये वाला हो जाएगा आपके पास माइनस का 4। ये तो हो गया AB। अब वो बोल रहा है कि आपके पास AB का हो गया, अब क्या दूसरे वाला क्या आपके पास A है, B है और C। आपको क्या बताया था आपने, कोलिनियर है, ठीक है। अगर ये कोलिनियर है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन पॉइंट नंबर C है, वो क्या होगा, पॉइंट जो C है आपके पास, C पॉइंट है, वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, पॉइंट C इसको सेटिस्फाई करेगा। ये होता है ना कि अगर कोलिनियर का मतलब यही होता है कि अगर A, B और C आपके पास क्या है, तीनों एक ही लाइन में है, AB, BB और CB। इसका मतलब ये जो लाइन जा रही है A वाली, इस पे जो भी पॉइंट्स आएंगे या फिर ये वाला भी अगर इसमें इंक्लूड होगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब C के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास, आप उनको क्या दे रखे हैं, 5, 5 और लैम्डा दे रखे हैं। तो x के प्लेस पे वी कैन पुट 5, y के प्लेस पे वी कैन पुट 5 हियर, और लैम्डा आएगा हमारा z के प्लेस पे। तो इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से, अगर आप देखें, यू विल हैव 5 plus 1 divided by -3, you will have here 5 minus 3 divided by what, -1, and you will have here lambda minus 2 divided by -4। if you simplify these two, आपके पास क्या आएगा, you will have, देखो यहाँ से आएगा 2, तो आपके पास आएगा 2 divided by -1 equals to lambda minus 2 divided by -4। and if you simplify, ये कट जाएगा, lambda minus 2 का वैल्यू आपके पास आएगा lambda, और lambda का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 6, sorry it will be 10, और लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 8 plus 2, that will be equals to 10, and this will be your answer for this question। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपके पास पॉइंट्स कोलिनियर दिए, प्लीज डोंट डू दैट मेथड कि AB निकाला, BC निकाला यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर मैग्नीट्यूड निकाला और बताया कि वो कोलिनियर। प्लीज डोंट डू दैट, वो 10th स्टैंडर्ड का था, आप इसमें नहीं अप्लाई कर सकते। भले उसने नहीं लिखा है कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बट ये आपको समझना पड़ेगा कि दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू 3D ज्योमेट्री, ठीक है, बाकी और किसी में ऐसा नहीं आता है। हाँ, वेक्टर्स की अगर बात करते हैं तो वेक्टर के इसमें कुछ दिया नहीं है, अगर आपको वेक्टर से करना है तो आप वेक्टर से सोच के कर सकते हैं कि कैसे करना है।
फैक्टर में कैसे कैसे आपको क्या क्या चीजें निकालनी होती है। बट ये मैं सजेस्ट करूंगी, ये इजी है कि हाउ टू फाइंड आउट कोलिनियरिटी। आपको दी है तो लैम्डा वगैरह की वैल्यू आपको कैसे निकालनी, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। शो दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। क्या निकालते हैं, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। इट विल बी 3x² माइनस 12x प्लस 12, और आपने चेक करना है कि फंक्शन क्या है, पूरा का पूरा पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे चेक करेंगे, उसके बाद आप क्या करते हैं, आपके पास निकालना होता है क्या, ये स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल लीजिए। और जरूरत भी नहीं है, अगर आप इसको देखो 3 अगर आप ले लें यहाँ से, x² माइनस कितना आएगा 4x प्लस 4। और अगर आप देखें इसको 3 ऑफ, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो जब इंक्रीजिंग बोला ना, इसका मतलब कुछ इस तरीके की चीजें आने वाली है। और 3 क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ये भी क्या हमेशा क्या ग्रेटर देन 0 होगा। अगर x को माइनस ले भी लेते हो, वी हैव द होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर को पॉजिटिव बना देगा एंड द कंप्लीट थिंग इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन क्या हुआ, इंक्रीजिंग हुआ। तो देखिए इसने बहुत कम टाइम लिया है अकॉर्डिंग टू द अदर क्वेश्चंस, इन कंपैरिजन टू द अदर क्वेश्चंस इसने कम टाइम लिया और जल्दी से हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये भी बहुत इजी से सिंपल सा क्वेश्चन है। डिवाइड बाय dx प्लस 2y इज इक्वल टू e टू द पावर 3x। कैसे सॉल्व करेंगे इसको फटाफट से बता दीजिए। अगर आप इसको देखें, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, वेरिएबल सेपरेट कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि प्लस में 2y दिया हुआ है, कैसे हटाएंगे। मल्टीप्लिकेशन में होता है तो हम कर सकते हैं, होमोजेनियस का क्वेश्चन है नहीं। तो बढ़ते हैं अपने कितना लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की तरफ, ठीक है। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अच्छी बात है। सबसे पहले निकाल लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए e टू द पावर इंटीग्रल p dx चाहिए होता है। p कितना है यहाँ पे बेटा, p यहाँ पे क्या है, p तो कुछ नहीं है, p सिर्फ 2 होगा, 2 dx हो जाएगा, वो तो कुछ नहीं है ना। चलिए क्योंकि p यहाँ पे कितना, p हमारा 2 है यहाँ पे, और q कितना हमारा, q है e टू द पावर 3x, ठीक है। चलिए तो ये कितना देगा, e टू द पावर देगा 2x देगा मुझे, बात ठीक है। चलिए ये हमारा इंटीग्रल फैक्टर हो गया। अब सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर हमारा होता है सोल्यूशन, एंड इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का प्लस c होता है। हाँ समझ में आती है। चलिए y इंटू इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू e टू द पावर 3x हो गई यहाँ पे, सॉरी 2x हो गई बेटा जी, एंड दिस विल गिव मी इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 3x इंटू इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x dx प्लस c। और ये दोनों मिला के कितना बना देगा, ये देगा मेरे को e टू द पावर, अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट लॉज इट विल गिव मी व्हाट 5x dx प्लस c। और 5x dx प्लस c का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, e टू द पावर 5x डिवाइड बाय 5 प्लस c एंड y इंटू e टू द पावर 2x। आप यहाँ पे छोड़िए, नो नीड टू कैलकुलेट फर्दर, आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपको फिर से इसमें टोटल पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ फटाफट से। dy बाय dx आपको दिया हुआ है, इसको भी सॉल्व करना है। अगर आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ध्यान से देखिए, अगर आप ऊपर की बात करें, ऊपर से कैन वी टेक समथिंग कॉमन, यस वी कैन टेक e टू द पावर 3 कॉमन आएगा, e टू द पावर 2x कॉमन लीजिए, व्हाट यू आर लेफ्ट विद 1 प्लस e टू द पावर 2x, ठीक है। और अगर आप नीचे वाले को देखें, अगर मैं सपोज इसमें से भी क्या कॉमन ले लूं, मैं इसमें से x कॉमन ले लूं, अगर e टू द पावर x में अगर कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बेटा जी 2x। देखिए आएगा कि नहीं आएगा, सॉरी माइनस लीजिए, माइनस कॉमन लीजिए, e टू द पावर माइनस x अगर कॉमन लूं तो ये क्या दे देगा, ये वाला टर्म तो क्या दे देगा, ये दे देगा मुझे 1, और इसके और इसको देखिए, इसको और इसको अगर आप मैच करते हैं तो क्या देगा, e टू द पावर 2x आपको देगा, और ये चीज आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी एंड यू आर लेफ्ट विद dy बाय dx इक्वल्स टू e टू द पावर व्हाट, ये माइनस है ये प्लस है, ऊपर ले जाओ जरा, e टू द पावर 3x बना देगा। अब क्या बनेगा, dy रह जाएगा अकेला, 3 ऑफ इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 3x dx। इसको जरा सॉल्व करिए, ये देगा इंटीग्रल की वैल्यू y इज इक्वल्स टू 3 ऑफ e टू द पावर 3x डिवाइड बाय 3 प्लस c, दिस विल कैंसिल आउट विद दिस, और y का वैल्यू e टू द पावर 3x प्लस c आपके पास आ जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का, ठीक है। मैंने बोला था ना, जैसे जैसे पेपर्स का नंबर बढ़ता जाएगा, लाइक दिस वाज मॉक टेस्ट पेपर नंबर 4, तो वैसे वैसे ना आपका डिफिकल्टी लेवल भी क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लाख ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा, ठीक है। तो यही है, आपको नींद आ रही है तो सो जाइए, थोड़ी देर बाद से फिर से उठ के पढ़ लेना, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जस्ट स्टॉप योर वीडियो एंड यू कैन रीड लाइक सॉल्व योर क्वेश्चंस आफ्टर सम टाइम। बट मैंने जैसे आपको पहले बोला था, प्लीज ऐसा नहीं है कि 1 प्रिपेयर कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, नाउ यू मूविंग टू 4, बड़ी अच्छी बात है, और पीछे वाला भूल गए, आगे दौड़ना और पीछे छोड़ना, प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। तो लाखों ठोकरों के बावजूद भी हम संभलते रहेंगे, हम फिर गिरेंगे, हम बार बार गिरेंगे, बट हम फिर भी उठेंगे और चलते रहेंगे और दौड़ते रहेंगे और अपनी मंजिल को पाके रहेंगे। विद दिस मोटिवेशन, स्टॉप फर्स्ट ऑफ बस
with this motivation move on to section number C, question number 26. ये इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आप दो फंक्शन दिए, एक ये है एक ये है, प्रोडक्ट रूल वगैरह जैसा कुछ नहीं लगेगा। इसको u लीजिए, इसको v लीजिए और हमें निकालना है dy by dx। dy by dx का मतलब we need to find out du by dx plus dv by dx। ठीक है, चलिए पहले हम u निकाल लेते हैं। u का मतलब है x to the power x। जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है, तो व्हाट यू नीड टू राइट, व्हाट इज एल्गोरिथम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक log both sides। log both sides लेना है तो कितना देगा मुझे, ये मुझे देगा log u और ये दे देगा मुझे x of log x। अब आप बोलोगे ये तो भाई log x of x देगा। हाँ बिल्कुल देगा, लेकिन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि पावर आगे आ जाती है, तो x of log x आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, अब आपने डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्या डिफरेंशिएट करोगे इसको, इट विल बी log u का डेरिवेटिव विल बी 1 by u और u का डेरिवेटिव विल बी du by dx इक्वल्स टू, अब यहाँ पे दो फंक्शन लेंगे, फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज आवर सेकंड फंक्शन। तो अप्लाई योर व्हाट, प्रोडक्ट रूल। Keep your first as it is, derivative of second, plus keep your second as it is, derivative of first। ये समझ में आता है सबको। चलिए, तो du by dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, u को जरा इधर शिफ्ट कर दो बिकॉज हमें u इधर एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, और u का वैल्यू वापस x में पुट कर दो ना बिकॉज क्वेश्चन वाज इन टर्म्स ऑफ x। सो x to the power x into 1 plus log x, ये हमारा हो गया du by dx का वैल्यू। ठीक है, अब आते हैं अपने v पे। v was equals to the same thing we need to follow here also, sin x to the power x। फिर से आप क्या करेंगे, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, आप log लगाएंगे दोनों साइड, log लगा दीजिए, log both sides। तो what it will be log of v is equals to x into it will be log of sin x। So 1 by v dv by dx equals to, फिर से log लगाइए प्रॉपर्टी, आप प्रोडक्ट रूल लगाइए, इट विल बी, रखिए फर्स्ट ऑफ ऑल x को एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड विल बी 1 by sin, नीचे आएगा log का और sin का होता है cos, प्लस अब log ऑफ sin x को वैसे ही रखिए और x का डेरिवेटिव होता है क्या 1। तो कितना आंसर आया, dv by dx का आंसर आएगा, v को शिफ्ट करना राइट हैंड साइड में, तो sin x to the power x, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा कितना, x cot x प्लस log sin x। आ गया आपके पास। सो दिस इज नंबर 2 एंड दिस वाज वन नंबर 1। अब क्या करना है आपने y में रखना है। तो आपका जो क्वेश्चन था dy by dx लिखिए इक्वल्स टू, और आप क्या कर दीजिए 1 plus 2 को ऐड करके लिख दीजिए, यू विल गेट योर फाइनल आंसर फॉर दिस dy by dx। ठीक है, तो यू कैन हैव सच काइंड ऑफ क्वेश्चन आल्सो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। आपको दिया है a, दिया है आपको 1 to 9, सेट दिया है आपको 1 to 9 और रिलेशन डिफाइन किया है उसने a b, रिलेशन c d, a प्लस डी b प्लस सी। ठीक है, प्रूफ करना इक्विवेलेंस है। सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है इक्विवेलेंस का मतलब, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिविटी की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी क्या कहती है, यहाँ से रिफ्लेक्सिविटी कहती है कि सपोज आपने a, b लिया, कहाँ पे a, b, आपने कोई a, b लिया, कहाँ पे लिया आपने, सॉरी दिस इज a, b बिलोंग्स टू a क्रॉस a। इसका मतलब हुआ कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन a, b आर ऑफ a, b, दोनों से आपने एक लिया ना, इसका मतलब हुआ कि यू विल हैव a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a। सो क्या हो जाएगा ये, क्या दिस विल बी रिफ्लेक्सिव। सेम a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a सेम होता है, तो दिस रिफ्लेक्सिविटी होल्ड्स हियर। बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री क्या कहती है, अब हमने दो लेने हैं, a, b एंड c, d। ये आपको पता होना चाहिए, रिफ्लेक्सिविटी में हमेशा एक एलिमेंट लिया जाता है, सिमेट्रिक में 2 लिया जाता है और ट्रांजिटिव में 3 लिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या देगा ये, वो कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन a, b आर c, d, इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस डी, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, a प्लस डी विल बी इक्वल्स टू b प्लस c। ठीक है, तो रिफ्लेक्स सिमेट्री कहती है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो बेटा जी c, d आर a, b भी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। चलो देख लेते हैं। तो इसमें क्या देता है, इसमें भी फर्स्ट और लास्ट मतलब c प्लस b इज इक्वल्स टू a प्लस d, द मिडिल वन a प्लस d। तो क्या ये ट्रू आ रहा है, आर दे ट्रू, यस, a प्लस डी b प्लस c के बराबर है और यहाँ पे b प्लस c क्या है, a प्लस d के बराबर है, तो ये भी ट्रू है और ये फंक्शन क्या हो गया, ये भी क्या, सॉरी रिलेशन क्या हो गया, इट विल बी सिमेट्रिक। बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ये आप लोगों ने किया हुआ है इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी समझा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने पहले भी इसको बहुत अच्छे से समझाया आपको। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिव में आप क्या लेंगे, इस बार हम 3 ऑर्डर पे लेंगे, ए बी लेंगे, हम बी सी लेंगे, ए बी लेंगे,
CD ले चुके हैं CD और इसी कंटिन्यू करते हैं E एंड F। ठीक है, तो ट्रांजिटिव क्या कहता है? ट्रांजिटिव कहता है कि अगर AB और BC है, AB और CD है, तो E एंड B क्या होगा उसमें होगा। कैसे? पहले फर्स्ट टू का पेयर लेते हैं, AB और CD का लेते हैं। AB R CD, AB R CD के हिसाब से क्या कंडीशन होनी चाहिए? We should have A plus D is equals to B plus C। अब लेते हैं लास्ट टू को CD और EF के हिसाब से। अब लेते हैं CD रिलेशन ऑफ EF। CD रिलेशन ऑफ EF का मतलब हो जाएगा, अब कर दीजिए कैसे, बाय डेफिनेशन फर्स्ट और लास्ट होता है, तो C plus F will be equals to D plus E। तो हमें क्या प्रूफ करना है इसमें? What we need to prove here? We need to prove, ये तो हमें गिवन था अभी तक, हमें प्रूफ करना है कि अगर ABCD है और CD EF के साथ रिलेशन बना रहा है, तो A और B का रिलेशन भी क्या होगा? A और B का रिलेशन भी बनेगा और वो ट्रू होगा। तो कैसे होगा? इसके हिसाब से तो हमारे जो प्रूफ करना है, हमारा आंसर आना चाहिए A plus F is equals to B plus C। बट हाउ टू गेट दिस? दिस वी नीड टू प्रूव। तो कैसे करेंगे? अगर आप देखें ये कंडीशन हमको दी हुई है, क्या करते हैं हम दोनों को ऐड कर देते हैं, फर्स्ट एंड टू, जस्ट ऐड what लेफ्ट टू राइट, राइट टू राइट, A plus B प्लस A plus D plus C plus F, this is equals to B plus C plus D plus E, and if you solve it, C plus C and C cancel out, D and D cancel out, what we are left with? We are left with A plus F, which is equals to B plus C, and you can see this we need to prove here। ये प्रूफ करना था, हो चुका है। इसका मतलब ये क्या हुआ? ट्रांजिटिव भी हुआ, और अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसका मतलब what can we say? We can say that the relation is given to be equivalence। बात समझ में आती है? अगर आपको रिलेशन इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, मींस आपको रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक तीनों चीजें प्रूफ करनी होगी, और यहाँ पे तो लिखा हुआ है प्रूव दैट। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ऑलरेडी वेल डिफाइंड एंड ट्रू स्टेटमेंट। आपको सिर्फ क्या करना है? आपको सिर्फ प्रूफ करना है डेफिनेशंस लगा लगा के अकॉर्डिंग टू द गिवन डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। इंटीग्रल ऑफ पाई बाय 3 टू पाई बाय 2 आपको ये दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, देख के घबराना नहीं। मैंने इसके फॉर्मूले बताया ना आपको, 1 प्लस कॉस का। 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला रख दीजिए जरा यहाँ पे। क्या होता है 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला? बोले फटाफट से, 2 कॉस स्क्वायर, बिल्कुल। और नीचे 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस का रख दीजिए। मैंने कहा था ये फॉर्मूले बड़े काम की चीज है। ये क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, और यहाँ पे कितने पावर ये है, लिख दीजिए। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल हैव पाई बाय 3 से लेके कितना, पाई बाय 2, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा विद दिस। रूट 2 को बाहर लिख लेते हैं, यू लेफ्ट विद कॉस ऑफ x बाय 2 नीचे, और यहाँ पे आ जाएगा इसका वेट क्या आएगा, 2 रूट 2 के पावर कितना, ऐसे लिख लेते हैं इसे, सॉरी 2 के पावर 5 बाय 2 आएगा, 2 के पावर 5 बाय 2, और यहाँ पे कितना आएगा, यू विल हैव साइन ऑफ x बाय 2, ऐसे नहीं, ऐसे, और साथ में पावर भी आएगी। दिस विल कैंसिल आउट, और आपका जो फाइनल बनेगा दैट विल बी पाई बाय 3 से लेके कितना, पाई बाय 2 रूट 2 कॉस ऑफ x बाय 2 dx डिवाइड बाई हाउ मच इट विल बी वॉट, कितना लिख सकते हैं इसको, बोलो। वी कैन राइट इज रूट टू द पावर वॉट, इट विल बी 5, एंड यहां से बनेगा, सॉरी इट विल बनेगा साइन ऑफ x बाय 2, पावर आएगी 5, ठीक है, बिकॉज 2 विल कैंसिल आउट विद 2 इन द डिनोमिनेटर, लेकिन पावर तो बचेगी ना 5 यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? और अगर आपने ये किया है तो दिस विल बी करेक्ट फॉर योर क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आगे। अब आई होप एवरीबडी कैन सॉल्व। अब क्या करना है, ऊपर कॉस है नीचे साइन है, अब क्या करना है, पुट योर साइन x बाय 2 एज t। अब मैंने इसको बता दिया, इसके बाद आप खुद सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। नाउ बिकॉज दिस इज, इसके बाद सिंपल है, हर चीज तो मैं नहीं बताऊंगी आपको, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। दिस इज विच मेथड वी आर अप्लाइंग, दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, एंड प्लीज इसमें एक चीज याद रखना, डोंट फॉरगेट टू चेंज योर लिमिट्स, डोंट फॉरगेट टू चेंज योर लिमिट्स। लिमिट जरूर चेंज कर लेना, वरना फिर आपके आगे चल के क्वेश्चन का आंसर गलत ही आने वाला है। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं ना, स्टार्टिंग मैंने बता दी, अब आप करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कि क्या आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू cos x बिटवीन दिस है। अगर आप देखें ये एनसीईआरटी का ना बेटा एग्जांपल है, शायद ये एनसीईआरटी का एग्जांपल आपके पास। ठीक है, ये याद रखो, ये सारी चीजें ना याद रखने वाली भी है। आपके पास एरिया बाउंडेड बाय द कर्व क्या ग्राफ होता है, सबसे पहले तो cos x का ग्राफ बना लो। cos x का ग्राफ एक बात बताइए, 0 से पास करता है कि नहीं करता? cos x 0 पास करता है,
बिल्कुल नहीं करता बेटा जी। cos x 0 से कैसे पास, cos 0 की वैल्यू क्या 0 होती है, cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है। तो सपोज दिस इज 1, दिस इज -1 और ले लेते हैं यहाँ पे दिस इज 0, ये आता है पाई बाय 2, देन पाई, देन 3 पाई बाय 2 एंड देन यू हैव 2 पाई। ठीक है, तो ग्राफ क्या बनेगा इसका, पाई बाय 2 पे कितना होता है, 0 पे होता है, तो ये ग्राफ यहाँ पे जाएगा और फिर cos पाई की वैल्यू -1 होती है तो ये इधर जाएगा, फिर 3 पाई बाय 2 पे इट विल बी अगेन 0 एंड यू हैव दिस काइंड ऑफ ग्राफ। तो ये ग्राफ आपका बनेगा। तो उसने आपसे बोला है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ठीक है, यहाँ ये वाला और तो ये हमें एरिया इसका फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे फाइंड आउट एरिया, चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ से सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ पे, ठीक है, कैसे आएगा, कितना आएगा बोलो, कहां से आएगा, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, एक ही बात है। 0 पे है ये, तो इंटीग्रल कितना हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से लेके पाई बाय 2। अब 1 से लेके पाई बाय 2 मत ले लेना, ये कॉमन सेंस की बात है। इंटीग्रल 0 से लेके पाई बाय 2, 0 से लेके पाई बाय 2 का मतलब देखो कौन सा आ रहा है ग्राफ, किसका ग्राफ है, ये cos x का है ना। चलिए cos x, और वैसे भी अगर 0 टू पाई बाय 2 देखें, 0 टू पाई बाय 2 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चलिए ये तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं प्लस, अब आता है हमारा पाई बाय 2 से लेके कितना, 3 पाई बाय 2। अगर आप यहाँ पे देखें पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2, ठीक है, 3 पाई बाय 2 में कैसा ग्राफ होता है, अगर आप देखें पाई बाय 2 से लेके पाई तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट दैट इज नेगेटिव, और पाई से लेके 3 पाई बाय 2 में ये होता है थर्ड, यहाँ पे भी क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। तो या तो आप इसमें नेगेटिव ले लो या फिर सीधी सी बात है, यू टेक द मॉडुलस साइन। ठीक है, यहाँ पे आपको या तो मॉडुलस साइन ले लो या आप इसको नेगेटिव ले लो। नेगेटिव ले लोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आने वाला, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ज्यादा कुछ खास नहीं होगा। ठीक है, नाउ प्लस, क्योंकि हम एरिया की बात करें, एरिया नेगेटिव हो नहीं सकता आपका। ठीक है, अब आता है फिर से फंक्शन, देखो यहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था, फिर से यहाँ पे फंक्शन क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। तो इट विल गिव मी इंटीग्रल 3 पाई बाय 2 टू व्हाट, 3 बाय 2 पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 से लेके 2 पाई तक, और 3 पाई बाय 2 से लेके 2 पाई तक कितना फंक्शन है, फिर से ये फंक्शन तो cos का ही है, सो इट विल बी योर इंटीग्रल। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप इसका आंसर मुझे बता दीजिए फटाफट से, मैं बता देती हूँ। आंसर विल बी 4। कैसे, देखो यहाँ का एरिया आएगा 1, इसका अगर आप देखें ये ऐसे आधा पोर्शन है, इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, तो 1 + 1 + 1 4। ये मेरा निकालने का तरीका है। ठीक है, आप इससे सिंप्लीफाई करके चेक कर लेना कि क्या आंसर इसका 4 आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ फटाफट से। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 29। चलिए 30 की तरफ बढ़ते हैं। आपको फंक्शन डिफाइन दिया हुआ है, ये आपका डोमेन है, ये आपका रेंज है, फंक्शन डिफाइन किया है f(x = x - 2 / x - 3)। तो आपको शो करना है कि फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव का मतलब आपको फंक्शन 1 भी प्रूव करना है और आपको फंक्शन को ऑन टू भी प्रूव करना है। 1 कैसे प्रूव करते हैं फंक्शन को, आप क्या करते हैं, लेट x1 and x2 बिलोंग्स टू योर डोमेन, देन वी से दैट f(x1 = f(x2)। और हम प्रूव करेंगे कि अगर f(x1 = f(x2) है तो x1 और x2 जो आपने पॉइंट्स लिए हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर वो इक्वल हुए तभी हम कहेंगे क्या, फंक्शन विल बी 1/1। कैसे, चलिए कर लेते हैं। इट विल बी x1 - 2 divided by x1 - 3, this will be equals to x2 - 2 divided by x2 - 3। क्लियर है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x1 x2 minus what, x1 x2 minus 3x1 minus 2x2 plus 6 will be equals to x1 x2 minus 3x2 minus 2x1 and plus 6। क्लियर है ये बात। इफ यू सिंप्लीफाई दिस विल कैंसिल आउट विद दिस, प्लस 6 विद प्लस 6, इसको इधर ले जाइए, कितना देगा, ये देगा माइनस x2 सॉरी प्लस x2 देगा, और इसको इधर ले आइए जरा, दिस विल गिव यू x1। तो यहाँ से हमारा क्या रहा, दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब फंक्शन क्या है, ये फंक्शन 1/1 है बेटा जी। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू कैसे चेक करते हैं, ऑन टू चेक करते हैं कि फॉर एवरी y belongs to y there exists x in the domain such that your f(x) equals to क्या होता है, y होता है, ये होता है ऑन टू की फंक्शन की डेफिनेशन। तो f(x) किसके इक्वल लिया है हमने, y के इक्वल लिया है, तो y is equals to what we can say, it will be x - 2 divided by x - 3। तो आपने जो बोला है ना कि फॉर एवरी y यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तो ये x आपने अब निकालना है। यहाँ पे ये क्या x होगा, किस फॉर्म का x होगा, तो कैसे निकालते हैं, अभी क्वेश्चन क्या है, x में है, तो इसको क्या करते हैं हम y में चेंज कर लेते हैं। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, yx - 3y equals to x - 2 and you will have here a yx - x equals to
3y माइनस 2 एंड यू विल हैव, अगर कॉमन ले ले x इसमें से तो y माइनस 1 बनेगा और ये बनेगा 3y माइनस 2 और x का वैल्यू आ जाएगा 3y माइनस 2 डिवाइड बाई y माइनस 1। दिस इज द प्रोसीजर। और उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम प्रूफ कर देंगे कि जो हमने बनाया है ये हमारा ये कुछ इस तरीके का हमारा x होगा, कुछ इस तरीके का हमारा x होगा। और अब हम प्रूफ करेंगे कि हमारा जो f ऑफ x होगा, f ऑफ x मतलब हमारा होगा, x को रिप्लेस करेंगे किससे, जो हमने बनाया 3y माइनस 2 डिवाइड बाई y माइनस 1। हमने क्या बोला था कि f ऑफ x किसके बराबर आना चाहिए, y के बराबर आना चाहिए। चलिए तो अब यहाँ पे प्रूफ कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, x के प्लेस पे मैंने ये रख दिया, तो जो फंक्शन हमारा दिया है उस फंक्शन में भी हम x प्लेस पे किसको रख देंगे, पूरे को 3y माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 1 माइनस 2 डिवाइड बाई हाउ मच, अगेन 3y माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 1 minus 3 and you will have here what, here you will have minus 3 minus 2 minus 2y plus 2, नीचे आएगा बेटा आपके पास 3y minus 2 minus 3y plus 3। ये समझ में आता है, इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। यस, उसके बाद व्हाट वी आर लेफ्ट विद, सिंप्लीफाई करिएगा इसको, दिस विल कैंसिल आउट विद दिस, ये कट जाएगा इसके साथ और आपके पास बचा क्या, 3y माइनस 2y विल गिव मी y और नीचे से आएगा 2 माइनस 3, दिस विल बी 1। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया और हमने प्रूफ कर दिया कि f x किसके बराबर है, f ऑफ x बराबर है y के। इसका मतलब फंक्शन क्या हुआ हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं इस वाले जो पेपर में, ठीक है। अब डिफिकल्टी लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा ताकि अभी जो थियरी है आपकी 80/80 की, जो फुल मार्क्स लाने की प्रिपरेशन है यहाँ से शुरू होती है। 1, 2, 3 पेपर्स उनके लिए है जो बच्चे आज तक जैसे पास भी नहीं हुए, उनको कुछ नहीं आता, हाउ टू लाइक गेट पासिंग मार्क एटलीस्ट, ठीक है। एंड सून आई विल गिव यू सम टॉपिक्स आल्सो फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि बिल्कुल आज तक पास नहीं हुए, जिनको आज तक समझ नहीं आया कि भाई करना क्या है पेपर में, उनको बिल्कुल श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगी कि यही टॉपिक करके जाना, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड अगर करना है तो ये मेरे मॉक टेस्ट पेपर कर लेना, इससे ना पास जरूर हो जाओगे, इतना मैं तुमको गारंटी देती हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं। फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट सी व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए और बी। आपको पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 1:2, ठीक है। और ए इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बीसी। इसका मतलब क्या हुआ, मैं डेफिनेशन यहाँ पे बताऊंगी, ये क्वेश्चन है सेक्शन फॉर्मूला का, करेंगे आप खुद से। मिड पॉइंट दिया है किसका, एक, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बीसी, ठीक है। अब आपको क्या दिया है, पॉइंट जो सी है, पोजीशन वेक्टर आप किसके निकालने हैं, सी के निकालने हैं, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए एंड बी। ये लाइन ए बी को क्या कर रहा है, डिवाइड। अगर आप देखो ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसके आपको क्या दे रखा है, ए का दे रखा है आपको पोजीशन वेक्टर 2a प्लस बी और बी का दे रखा है आपको वेक्टर a माइनस 3b, ठीक है। ये तो आपको गिवन है। अब उसने आपसे कितना रेशियो क्या है, 1:2, ए और बी को सी डिवाइड कर रहा है किसको, 1:2। पहले क्या आएगा, ये इधर आएगा कि किधर आएगा बोलो, यहाँ पे आएगा आपका 1, यहाँ पे आएगा आपका 2, ठीक है। मैंने उल्टा फिगर, अगर मैं सी इधर लेती तो 1:2 इस तरीके से आएगा, ए और सी के बीच में रहेगा 1, क्योंकि 1:2 है पहले ए, ठीक है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, कैसे हम करते हैं, हम करते हैं एम बी प्लस एन ए डिवाइड बाई एम प्लस बी, सॉरी बी प्लस एम माइनस एन, सॉरी एम प्लस एन, ठीक। ये फॉर्मूला करते हैं, बट दिस फॉर्मूला एप्लीकेबल व्हेन योर पॉइंट इज डिवाइडिंग योर लाइन सेगमेंट इंटरनली। लेकिन उसने तो पहले बोला बेटा एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली में क्या हो जाएगा, सिर्फ आपके पास क्या होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, दोनों जगह पे माइनस हो जाएगा, एम माइनस एन। ये आप फॉर्मूला लगाएंगे एक्सटर्नली। तो कैसे करते हैं इसको, किससे करते हैं, इनको डिफाइन करिए जरा। इसकी कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए एक्स आई प्लस एक्स और वाई मान लीजिए, एक्स और वाई, एक्स आई क्या मान लीजिए, एक्स और वाई मान लीजिए, एंड अकॉर्डिंगली सोल्व योर क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है, और मान जरूरत भी नहीं, उसने तो मिड पॉइंट बोला ना वैसे भी, हाँ ए इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, ये तो मिड पॉइंट है इसका। एंड अकॉर्डिंगली सोल्व योर क्वेश्चन एंड टेल मी इन द आंसर कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। पहले पोजीशन वेक्टर निकालना है सी का पोजीशन वेक्टर निकालिए पहले, आ जाएगा। उसके बाद आपने शो करना है कि आपका जो ए है वो क्या है, मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट बीसी का, ठीक है। बात समझ में आ रही है, चलिए
पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन इजी था, इससे मैंने नहीं करवाया, ठीक है। ये उनके लिए आप जो आप मुझे बताएंगे करके कि इसका क्या आंसर है। सेक्शन फॉर्मूला आप 10th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं, वहां पे आपने नॉर्मल किया था, यहाँ पे आप करेंगे किसमें, आई और जे और के की टर्म्स में। आपके पास आई जे के आ जाते हैं, वेक्टर्स की फॉर्म आ जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर अभी 32 पे आ जाते हैं, सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। भाई कंप्यूटिंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पेयर्स इंटरसेक्ट और नॉट। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन कितनी बार करवाऊं भाई, कैसे करेंगे? शॉर्ट ये इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो क्या निकालना है आपने निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या फॉर्मूला होता है, थक गई मैं बता के आप तुम लोगों को। दिस, फिर आपके पास आता है क्रॉस लेते हो, ये डॉट लेते हो, डॉट लेते हो, ठीक है। b1 क्रॉस b2 एंड डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड, ये होता है। अब ये तो हो गया कि मैडम हमें डिस्टेंस तो निकालना आता है, बट इसका कैसे पता है कि वो इंटरसेक्ट करेगा नहीं करेगा। देखो अगर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आया नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब वो डज नॉट इंटरसेक्ट, दे विल नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया 0, इसका मतलब क्या, ओवरलैप कर रही है। ओवरलैप करने इसका मतलब या तो पैरेलल है, ओवरलैप करनी है, इसका मतलब वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो सीधी सी बात है, निकालना आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है, तो निकालिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आर दे इंटरसेक्टिंग और नॉट। इसने बोला है वेदर दे आर इंटरसेक्टिंग और नॉट, बताना है कमेंट सेक्शन में। आप मुझे बताएंगे कि कर रही है कि नहीं कर रही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने, और ये मेरे से लिख लो, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 100% क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सीधा आने वाला है पेपर में, कि भाई फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या चेक कर लो इंटरसेक्ट कर रही है नहीं कर रही है। बात एक ही है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, सीधी सी बात, ये बात। और ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, 100% आएगा। और यहाँ पे तो देखो उसने क्वेश्चन नंबर कितना, सेक्शन डी में 5 मार्क्स पे दे रखा है, वरना 3 में आ सकता, 3 में आएगा मैक्सिमम। अगर किस्मत अच्छी हुई आपकी तो 5 में आ सकता है, वरना 3 में तो आएगा ही आएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। फाइंड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स। 5 यूनिट का वेक्टर निकालना है आपको, ए एंड बी, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या दे रखा है, सॉरी ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से उल्टा लिखा हुआ है। फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स परपेंडिकुलर टू ईच। परपेंडिकुलर किसके, इसके भी और इसके भी। कोई वेक्टर किसी के परपेंडिकुलर कब होता है, ये बात आपको मैंने पहले बताई थी। अगर दो वेक्टर आपको दिए हैं, सपोज दिस इज ए एंड बी, इनके कोई भी परपेंडिकुलर कैसे होगा, इनका परपेंडिकुलर होगा जो इनका क्रॉस होगा, ठीक है, ये होगा ना। तो इसी तरीके से चलो पहले अब निकाल लेते हैं ए प्लस बी का मतलब क्या है। ए प्लस बी को हम मान लेते हैं सी, और दूसरा को मान लेते हैं डी अपन, कितना, ए माइनस बी। चलिए ए प्लस बी का अगर देखें तो ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए प्लस बी का मतलब है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है बेटा। और ए माइनस बी का मतलब क्या है, दिस विल बी 0i और इट विल बी माइनस ऑफ j एंड माइनस ऑफ 2k। चलिए अब हमें चेक करना है क्या, हमें निकालना है c क्रॉस d। इसका मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर तो इस तरीके से होगा ना, तो c क्रॉस d का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ से c क्रॉस d का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से, और आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल हैव हियर i j और k निकालना होता है क्रॉस प्रोडक्ट। इट विल गिव मी 2 3 4, it will be 0 minus 1 and minus 2. If you simplify it further, you will have here what, i of this is minus 6 plus 4, तो minus 2 आ जाएगा, plus 4 आपके पास minus j of what, minus 4 and this will be minus 4 plus k of minus 2, ठीक है। तो आपके पास जो वेक्टर आया that will be minus 2i plus 4j minus 2k। क्लियर है। अब उसके बाद क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। The magnitude of that will be under root of 4 plus 16 plus 4। अब हमें क्या निकालना था, बाकी हमें निकालना था एक वेक्टर जो कि मैग्नीट्यूड कितना हो, 5 यूनिट्स का हो। यही मतलब है 5 यूनिट्स का वेक्टर निकालना है। इसका मतलब देखो परपेंडिकुलर टू दिस यूनिट वेक्टर चाहिए। वेक्टर तो क्या हो जाएगा, सपोज इसको भी क्या ले लेते हैं, हमें निकालना है वेक्टर सी, इसका क्या, इसका ऐसे यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या होता है यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, द वेक्टर इटसेल्फ डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, दैट विल बी कितना, 16 प्लस 16, दैट विल बी 30, 16 प्लस 8 सॉरी, दिस विल बी 28, दैट विल बी 24। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए मैग्नीट्यूड उसका 5 होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड अगर 5 चाहिए तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसके सामने क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई विद 5 कर दो, ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ 5। कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा, आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई विद 5 कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बस कुछ नहीं करना इसमें,
बस देखो उसने ना सिर्फ ये आपका चेक किया क्या, डू यू नो कि व्हाट आई मीन बाय दिस परपेंडिकुलर ऑफ द वेक्टर, कि लाइक अगर दो वेक्टर आपको दिए हैं तो वो टाइप ऑफ वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ। तो उसने पहले a प्लस बी आपने एडिशन चेक किया, दूसरे में उसने आपने सब्ट्रैक्शन चेक किया, फिर उसने आपसे क्रॉस प्रोडक्ट भी चेक किया कि हाउ टू फाइंड आउट क्रॉस, उसने आपने यूनिट वेक्टर भी चेक कर लिया। तो उसने ना इस एक क्वेश्चन में आपसे 4-5 कॉन्सेप्ट आपके चेक कर लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ फटाफट से। आपको ए दिया है, बी इनवर्स दिया है, आपको ए बी इनवर्स निकालना है। ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगी आपको, ये आप खुद से करेंगे। देखिए अगर आप देखें, अगर आप बोलो कि मैम पहले मैं ए और बी निकाल लेता हूँ और फिर मैं इनवर्स निकाल लूंगा, तो बेटा ए तो आपको दिया लेकिन बी नहीं दिया आपको, तो कहीं बी कैसे निकालोगे आप? ठीक है, बी कैसे निकालोगे? हालांकि यू नो कि इनवर्स का इनवर्स जब आप करते हैं तो आपके पास वापस से भी आ जाता है। ठीक है, बट उसके लिए भी फिर से इनवर्स तो निकालना ही पड़ेगा। एक इनवर्स यहाँ निकालोगे, फिर दोबारा मल्टीप्लाई करके फिर इनवर्स निकालोगे। तो बेटर यू डू व्हाट, आप इसका प्रॉपर्टी लगाइए, व्हाट इज ए बी इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब ये तो आपको ऑलरेडी गिवन है, आप बस इसका निकाल लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, इनवर्स निकालना मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से भी सिखाया हुआ है और मैंने आपको नॉर्मल भी तरह सिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे आंसर निकाल के कि आपका रो वाइज और कॉलम वाइज लिखने में परेशानी होगी। रो वाइज लिख देना कि रो 1 में इतना है, रो 2 में इतना है और रो 3 में इतना एलिमेंट्स है। ठीक है, वो मैं देख लूंगी अकॉर्डिंग टू दैट, और कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे जरूर कि कितना आंसर आपको इसका आ रहा है। ये फ्री के क्वेश्चंस हैं जो आपके पास आएंगे पेपर में एंड यू नीड टू सॉल्व। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। सॉरी, आपके पास ए दिया हुआ है, आपके पास बी दिया है, आपको फाइंड आउट ए बी करना है, सॉल्व करना है इसको, इन इक्वेशंस को, इसको देखते हुए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर आप इसको देखें, अगर आप इसको ए बी निकाले यहाँ से, आई होप सबको मल्टीप्लीकेशन करनी आती है। अगर आप इसकी मल्टीप्लीकेशन देखेंगे, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, तो मेरे हिसाब से अगर मैं इसको सॉल्व करूं, क्वेश्चन ना एनसीईआरटी का है, तो मैं लिख देती हूँ। इसका कुछ इस तरीके से आंसर आने वाला आपके पास। इसका मतलब आपके पास आएगा 6 ऑफ आई। ठीक है, 6 ऑफ आई आपके पास आने वाला है, तो ए बी का वैल्यू आएगा 6i। चलिए ये तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन अब वो बोल रहा है कि इसी को यूज करके हमने ये सॉल्व करना है। अब जो इक्वेशन दी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग क्या ना है, फाइंड माइट फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्या होता है, ए एक्स इक्वल टू बी लिखते हैं ना हम, उसके बाद ए निकाल सकते हैं, इसको यूज करके ए क्या होगा, ए विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा 1, फिर -1 0, देन सेकंड विल बी 2 3 एंड 4, लास्ट विल बी 0 1 एंड 2। ये होता है। और एक्स क्या हमारे पास, एक्स वी हैव एक्स वाई जेड एंड बी वी हैव 3 17 and 7 and we have done this type of this question in class also, I think so। चलिए अब वो बोल रहा है कि इन दो आपस में क्या है कि ये इसको जो हमने अभी ऊपर निकाला ना 6 ये मल्टीप्लाई करके, इसी को यूज करके मैंने इसको सॉल्व करना है। अब बाकी हम करते क्या, हम करते हैं x इक्वल्स टू a इनवर्स ऑफ b, यही करते हैं। चलिए अगर आप देखें इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 6 आइडेंटिटी आई। ठीक है, अब आपने अगर याद हो, आपने इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि अगर दो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आई आता है। यहाँ पे 6 आ रहा, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, तो मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके भी कैसे कि ए बी का इनवर्स है और बी ए का इनवर्स है। ठीक है, अब हमें किसका इनवर्स चाहिए, ए का चाहिए कि बी का चाहिए, हमें चाहिए ए का। तो एक बात बताओ, ए वाला कौन सा है इसमें, ये वाला ना, तो ये ए इनवर्स ये है, इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स बेटा ये सीधा सीधा बी हो जाएगा, 20 का सीधा सीधा क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें ये दिया होता, बी दिया होता, तो हम बोलते हैं कि ए इनवर्स है इसका, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रही है। बात समझ में आ रही है? तो व्हाट कैन बी राइट, वी कैन राइट हियर कि एक्स का वैल्यू जाएगा, ए इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, ए इनवर्स का मतलब नथिंग बट इक्वल्स टू 1/6 ऑफ बी, 1/6 ऑफ बी, क्योंकि 6 से 6 को साथ में रखना है, क्योंकि जब आप इसको इधर लेके आएंगे बी निकालना है ना इनवर्स का मतलब, तो आपके पास इसको हम वापस ले आएंगे, इसको ले जाओ, जो आपका पास ये है ए है, इसको इधर ले जाइए इनवर्स को, और जो 6 है उसको नीचे ले आइए, नीचे ले आइए इस तरीके से। ठीक है, व्हाट कैन यू राइट कि ए बी वाज इक्वल्स टू 6i, यू शिफ्टेड हियर, और प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, पर मैं सीधे सीधे समझा रही हूँ, दिस विल बी b/6। ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई एंड पुट योर वैल्यूज। अब ये b था, इसको b मत मानो, इसको कुछ c मान लो। ठीक है, उसमें क्या आप बोलोगे बी तो ऑलरेडी दे रखा है, फिर ये कुछ बहुत सभी आगे,
ये आ गया बी सी आपके पास। तो 1/6 ऑफ, what you write here, 2 minus 4 2 will be 2 2 minus 1 and minus 4 5 and multiply with your given what to the right hand side. This was 3, this was 17 and this is 7. आप इसको जरा सिंप्लीफाई करिए, 1/6 of how much you'll get? You get here 6 plus 34 minus 28 will have minus 12 plus 34 again minus 28. Here you will have 6 minus 17 and plus 35. Clear? And if you simplify it will be 1/6 of 12 minus 6 24 और आपका जो आंसर आएगा that will be 2 minus 1 and 4. And accordingly these are the values of what? This will be of x, this will be of y and this will be of z. And these are the values and this you how to solve your question. तो ये भी आपके पास बहुत इजी सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है। बात समझ में आ रही है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है बेटा जी, क्लास में भी किया हुआ है सब लोगों ने, सबके स्कूल्स में, जिसके भी जो भी वीडियो देख रहे हैं अदर देन माई स्कूल, सबकी स्कूल में टीचर्स ने कराया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे सेक्शन नंबर सी की तरफ, क्योंकि हमारा फाइनल सेक्शन है और फटाफट से जल्दी से कर लेते हैं इसको, टाइम भी बहुत हो रहा है और अब वीडियो भी लंबी होती जा रही है। आप लोग बहुत पेशेंस रख रहे हैं एंड आई अप्रिशिएट दैट कि आप लोग कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, चीजों को करेंगे तो चीजें बेहतर होंगी, ठीक है, और चीजों को बेहतर ही करना है। चलिए फटाफट से केस स्टडी की बात कर लेते हैं, अब 10-15 मिनट और लगेंगे, बाकी खत्म हो जाएगा। अभी इसमें क्वेश्चन थोड़े से बड़े थे इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। चलिए बढ़ते हैं। आप वो बोल रहा है कि समटाइम्स एक्स एंड वाई आपको फंक्शंस दिए हुए हैं, वाई पैरामेट्रिक फॉर्म कुछ दी है टू फाइंड आउट, उसने लिखा है कि पैरामेट्रिक फॉर्म ना सॉल्व कैसे करनी है। अगर आप देखो कैसे लिखा हुआ है ना पैरामेट्रिक कैसे, फर्स्ट राइट द गिवन पैरामेट्रिक्स ऐसे दिया हुआ है और फिर डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालना है सब दिया उसने, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है वो भी बताया उसने, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, x इक्वल टू log t, y इज इक्वल टू cos t। हाउ विल यू फाइंड आउट, उसने बोला कि डी वाई बाई डी एक्स निकाल के दिखाइए, तो निकाल देते हैं। x का मतलब क्या है, log t है, तो x का मतलब अगर डेरिवेटिव अगर देखें तो फंक्शन t में है, तो dx बाई dt कितना हो जाएगा, इट विल बी 1/t, और तो कुछ नहीं आएगा। और क्या आएगा यहाँ पे पास, y इज इक्वल टू cos t दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया है तो मतलब डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई dt कितना हो जाएगा, दैट विल बी माइनस ऑफ sin t। क्लियर? एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है कि आपने पहले डी वाई बाई डी को ऊपर लिखना है, डी वाई बाई डी टी को, और नीचे लिख देना है आपने किसको, डी वाई बाई डी एक्स बाई डी टी को। क्लियर है? चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा, टी को जरा ऊपर ले जाओ, माइनस टी ऑफ साइन टी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब उसने ये दिया हुआ है, फिर से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है 2/3 पे, तो कितना हो जाएगा x, अब सीधे से लिख दूं डी वाई बाई डी एक्स, चलो मैं सीधे से लिख देती हूँ, दैट विल बी 2t डिवाइड बाई a 3t स्क्वायर। तो किस पे निकालने वैल्यू, 2/3 पे निकालने, तो 2 इंटू 2/3 डिवाइड बाई a इंटू 3 इंटू 4/9, ये कट जाएगा 3 पे, और क्या ये 3 ये 3 से कट जाएगा और ये 4 पूरा इस 4 से कट जाएगा और आपके पास आएगा 1/a विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यही आ रहा है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट की इसकी। अब फिर से ये निकालना, वही चीज मतलब वही सब निकालना बार बार। चलिए डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, इट विल बी व्हाट, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब फिर से डायरेक्टली लिख रही हूँ मैं, साइन टी का मतलब आएगा कॉस टी, माइनस ऑफ माइनस कॉस का होता है प्लस होता है, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ साइन टी, नीचे अब नीचे डी एक्स बाई डी टी आएगा तो डी एक्स बाई डी टी का ये रहा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, प्लस कॉस साइन का हो जाएगा माइनस ऑफ प्लस ऑफ कॉस। इसकी वैल्यू किस पे निकालनी है, टी इक्वल टू पाई बाई 2 पे। टी इक्वल टू पाई बाई 2 की अगर बात करें, कॉस पाई बाई 2 क्या होता है, 0 होता है, साइन पाई बाई 2 क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ से आएगा -1, यहाँ से आएगा +0, और 1 डिवाइड बाई -1 का आंसर आ जाता है -1। क्लियर है? चलिए हो गया फटाफट से क्वेश्चन। अब आते हैं इस पे कर लेते हैं। अब इसका भी सेम ऐसे करना है, डी वाई बाई डी एक्स की बात कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब कितना है, पहले डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी लिखेंगे, ये देगा 8 ऑफ tan t क्या होता है, दैट इज सीकेंड स्क्वायर टी, डिवाइड बाई, अब इसके नीचे कितना आएगा, 4 ऑफ माइनस ऑफ साइन टी, इसे कैंसिल कर लो जरा, और इसकी वैल्यू किस पे निकालनी है, इसकी निकालनी है टी इक्वल टू पाई बाई 4 पे। चलिए रख दीजिए वैल्यू जरा, कितना लिखिए इसको, माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, 1 बाई ऑफ कॉस स्क्वायर का मतलब होता है साइन, अगर सीकेंड स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर होता है, सीधे सीधे लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई बाई 4 इंटू साइन ऑफ पाई बाई 4, तो क्या वैल्यू देगा, ये देगा आपको माइनस ऑफ 1 बाई
cos पाई बाय 4 1/√2 होता है, दैट इज स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा इनटू दिस विल गिव मी 1/√2, तो इट विल बी 1/√2, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा -2√2। जस्ट चेक योर आंसर एंड टेल मी। ओह ऊपर 2 भी था, सॉरी ऊपर 2 भी था, आई फॉरगॉट दिस 2, ये 2 आएगा तो 2 into 2 दैट विल बी 4, यू विल हैव 4 ऑफ दिस, यहाँ पे 2, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 36। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ फटाफट से। अब आपके पास एलपीपी का क्वेश्चन है। देखिए एलपीपी ना पीछे ग्राफ बनाना नहीं आया था ना, तो अगर आपके पास ग्राफ 3 मार्क्स में नहीं आता है देन बी हैप्पी कि आपके पास 4 मार्क्स पे उसका केस स्टडी आने वाला है, ठीक है, बट आएगा जरूर। चलिए आपके पास एक फंक्शन, आपका एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है, उसका ग्राफ दिया है अच्छा खासा। वो बोल रहा है इन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग, नंबर ऑफ एन दिया आपको, नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स, तो आपको n+2 का होल क्यूब निकालना है। अब ये क्या बच्चों वाले क्वेश्चन है। अब ये आपके पास शेडेड रीजन है, कौन से कॉर्नर पॉइंट्स है आपके पास, एक तो ये हो गया 1, एक हो गया ये 2, एक है 3 और एक है 4। वही कॉर्नर पॉइंट्स लेने हैं जो हमारा फिजिकल रीजन के अराउंड। कितने हो गए, 4 पॉइंट्स हो गए ना, तो यहाँ पे 4 रख दीजिए, 4 + 2 होल क्यूब, एंड यहाँ पे कितना आ गया 6 होल क्यूब, एंड द आंसर विल बी 216। 36 into 6 is 216, so this will be answer for this question। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें। अब ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पे आ जाते हैं, हमें बोल रहा है Z11 की वैल्यू बतानी है। Z11 का मतलब है कि जो भी Z है आपका 10500, x को रख देना 1 और y को भी रख देना कितना 9000 into 1, तो कितना आंसर आएगा, जोड़ दीजिए जरा, ये लो कितना आ गया आपके पास 00591। दिस विल बी आंसर फॉर सेकंड पार्ट। देखिए बहुत इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट वेयर फंक्शन इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम। अब कौन कौन से पॉइंट्स है मेरे पास, अगर आप देखें 0,0 है, वी हैव 30,20 सॉरी, वी हैव 40,0 एंड वी हैव 0,50। ठीक है, वो बोल रहा है कि किस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, फंक्शन इज गिविंग मी द मैक्सिमम वैल्यू। अगर 0,0 पुट करेंगे विल हैव 0, इसको करिए कितना आएगा आपके पास, यू विल हैव हियर 31500 प्लस 12318 एंड यू विल हैव हियर 50094। ये वैल्यू आएगी आपके पास 30,20 पे। 40,4 की बात 40,0 की बात कर लेते हैं, इट विल गिव मी व्हाट 1 2 3 आ जाएगा यहाँ पे, और 20 एंड 4 ये आएगा आपके पास 40,0 पे। 50 पे बात कर लेते हैं, 50 पे आपका आएगा 45 1 2 3 ऑलरेडी है, एक आएगा इसके नाम का। तो कौन से वाला मैक्सिमम हुआ, फटाफट से बता दीजिए कौन से वाले फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। 30,20 पे, 40,0 पे किस पे आ रहा है, मैक्सिमम इज गिविंग मी एट विच पॉइंट, इसमें पॉइंट से तो लगाना तो भूल ही गई। इट इज गिविंग मी वैल्यू एट दिस पॉइंट। दिस इज व्हाट, दिस इज 4,20,000, दिस इज 4,50,000 and here you will have 4,95,000 you have, just I forgot this 0। ठीक है, नींद आ रही है मेरे को भी अभी, ठीक है ना, रात हो गई काफी। चलिए सो फाइन, अब बात कर लेते हैं इसकी लास्ट वाला, z ऑफ 20,20 पे और फिर माइनस z ऑफ 10,10। अरे भाई कितनी बार बताऊं मैं, ये पे क्या करना है, x को 0 y रखो, y यहाँ पे x और y को दोनों को 20,20 रखो, वो निकालो यहाँ पे और फिर माइनस कर दो किसमें, x को इस बार 10,10 रखो। तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, बता दो भाई फटाफट से कितना आंसर आएगा, क्योंकि ये बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए हैं, अब नहीं कर सकते इससे ज्यादा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द दिस वीडियो टुडे। गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्स दिए हैं भाई, जिसमें कि 1 2 3 बॉक्स दे रखे हैं। चलो बॉक्स बना लेते हैं लास्ट क्वेश्चन को फटाफट से। बॉक्स 1 हो गया हमारा, बॉक्स 2 हो गया हमारा और बॉक्स 3 हो गया। आई नो कि आज बहुत मोनोटोनस हो रहा है, क्यों, क्योंकि मेरा भी कोई जॉब बॉक्स बनाने का मन नहीं है, पेपर बनाने का हालांकि मन नहीं था, बट आप लोगों को सोच के मैं नहीं रोक पाई खुद को, मैंने बना दिया। बट थोड़ा सा मूड थोड़ा सा ठीक नहीं था, तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, बस इसलिए बना दिया। और फिर क्वेश्चन भी थोड़े अच्छे नहीं आए, ठीक है ना। देखो जब कुछ सब गलत, तो एक चीज गलत होती है ना, तो मतलब जब हमारे माइंड में एक नेगेटिविटी आती है, पॉइंट मतलब हमारे जो थॉट्स है वो पॉजिटिव नहीं होते ना, तो सारी चीजें धीरे धीरे ना वो नेगेटिव और वो गलत ही होने लगती है। मेरा मन भी नहीं था, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और क्वेश्चन भी ना उसी तरीके के आ रहे हैं, रोते हुए थे और बड़े बड़े से गंदे गंदे से, तो मेरा मन भी नहीं कर रहा था करने का।
चलिए, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन है, करते रहेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे, इसी का नाम जिंदगी है। ठीक है, हंसते मुस्कुराते रहिए, क्वेश्चंस को करते रहिए, अच्छे से पास हो जाइए, आप लोग अच्छे से सेटल हो जाइए, उससे ज्यादा एक टीचर को कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3 की बात कर लेते हैं। अब उसमें क्या क्या है कि इन बॉक्स 1 बोथ आर गोल्ड कॉइन्स, इसमें दोनों की दोनों गोल्ड कॉइन है। बोथ उसमें बैक दूसरे बॉक्स में क्या है, दूसरे वाले बॉक्स में एक गोल्ड है और एक नहीं, बोथ सिल्वर, बोथ सिल्वर, इसमें दोनों सिल्वर हैं। और भाई बॉक्स 3 में क्या है, 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर है। चलो 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर। चलिए, ए पर्सन चूजेस ए बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट ए कॉइन। अब एक बात बताओ, बॉक्स को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/3। इसको भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है। कौन से बॉक्स को करना मुझे नहीं पता। ठीक है, सबसे बोला है कि फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे। टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है, कैसे निकालेंगे। बॉक्स की प्रोबेबिलिटी का होगा 1/3। एक बात बताओ, हमें क्या निकालना है, किसका, ड्रॉइंग है गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी यहाँ से कितनी होगी, कितने गोल्ड कॉइन है, 2 है। फेवरेबल भी कितने हैं, 2 है, और टोटल भी कितने हैं, 2 है, तो हो गया 1। यहाँ पे 2 भी है एनी गोल्ड कॉइन नहीं, तो जी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 डिवाइड बाई कितना लिखेंगे, 2। टोटल तो नीचे 2 आएगा, तो आंसर भी 0 हियर। और इसमें गोल्ड कितना है, 1 है, तो 1/2 हियर। ठीक है, तो अब टोटल कैसे निकलती है, मल्टीप्लाई कर दीजिए जरा इनको, किसको किससे, 1/3 इंटू 1 प्लस इसके साथ 1/3 इंटू 0 प्लस इसके साथ 1/3 इंटू 1/2। सो व्हाट यू हैव हियर, ये तो 0 हो जाएगा, यू हैव 1/3 प्लस 1/6 एंड दैट इज व्हाट, 6 ऑफ 2 प्लस 1 that is equals to 3/6 and your answer will be 1/2 for this। बात समझ में आती है। चलिए लास्ट बात कर लेते हैं। If the drawn coin is of gold, then find the probability that other coin in box is also of gold। क्या बोलना चाह रहा है भाई, बोलना है कि if drawn coin is of gold, then find the probability that other coin in the box is gold। ओहो, उसका मतलब बोला कि 2 कॉइन निकालने थे, उसने बोला कि अगर एक कॉइन गोल्ड निकाल लिया, कॉइन जो गोल्ड का निकाल लिया, तो आपको बताना है कि जो दूसरा कॉइन बचा बॉक्स में वो भी कैसा होगा, गोल्ड का होगा, गोल्ड का ही होगा। तो अगर आप देखें तो इसमें ऐसा कौन सा हो सकता है कि पहला गोल्ड निकालने के बाद भी दूसरा गोल्ड, तो कौन सा फेवरेबल, इसका देखो घुमा के क्वेश्चन दिया है थोड़ा सा। ठीक है, उसने सीधे सीधे नहीं बोला कि इट इज फ्रॉम द बॉक्स 1, उसने घुमा के बोला कि एक गोल्ड निकाल ले तो दूसरा भी गोल्ड बचना चाहिए। तो ऐसा कौन सा है, बॉक्स 2 में तो गोल्ड है ही नहीं। तीसरे में की अगर बात करें तो एक गोल्ड निकालने के बाद एक सिल्वर ही बचेगा। तो ऐसा कौन सा बॉक्स है जिसमें कि दोनों गोल्ड है भाई, ये हमारे वाले में बात कर रहा है कि भाई फेवरेबल हमारा जो होगा ना वो बॉक्स 1 होगा। ये सीधे सीधे बात नहीं कर रहा हमसे, वो हमें घुमा के बात करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 ऊपर आ जाएगा, ये हमारा फेवरेबल है। सो 1/3 इंटू दिस, और नीचे टोटल आता है, टोटल हमने भी निकाला 1/2, तो इट विल बी व्हाट, 1/3 डिवाइड बाई 1/2, और इसका मतलब क्या हुआ, आंसर विल बी 2/3। 2/3 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आई। देखो इसने यहाँ पे घुमा के आंसर दिया ये वाला, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, लास्ट सेकंड वाले पार्ट में इसमें कंफ्यूज नहीं होना प्लीज। ठीक है, सो दिस वाज एंड ऑफ व्हाट दिस मॉक टेस्ट पेपर नंबर 4। एंड अगेन इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और बता दीजिएगा भाई पढ़ाई कर लो, तुमको जैसे मैं समझाती हूँ वैसे उनको समझाइएगा जरा। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद पेपर नंबर 5, उसमें अच्छे से करेंगे। अब मैंने जैसे बोला था डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा, प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए, डोंट फॉरगेट द कॉन्सेप्ट, भूलना नहीं है। एज आई टोल्ड यू, मेक ए सेपरेट रजिस्टर एंड सॉल्व योर क्वेश्चंस। क्लियर? सो फटाफट से नेक्स्ट इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और जल्दी मिलेंगे पेपर नंबर 5 के साथ। टिल देन यू कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय। गुड नाइट, सो जाइए अब।